السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کالی دنیا، کالا جادو، کالے لوگ، کالے روگ قدم قدم پہ نظر آئے مجھے حج پہ۔ بھائی ان لوگوں کے پاؤں پکڑ لو، پاؤں پکڑ لو، پاؤں، یہیں پاؤں پکڑ لو ان کو کہو پہلے آنے والوں کا حق ہے، نہ حق مارو لوگوں کا، ہمارے پاس منت ہے، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ کالی دنیا، کالا جادو، کالے لوگ، کالے روگ قدم قدم پہ دیکھ۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایسے ہی دیکھتے کہا اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ، خوش کرو، 6 مہینے کا محتاج ہے، 6 ہفتے کا مہمان ہے، 1 ہفتے کا، 1.5 ہفتے کا، ڈاکٹر کہتا ہے، اس پہ وہی آتی ہے کیا؟ وہی کے دروازے تو ختم نبوت کے صدقے بند ہو گئے۔ ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ذمہ دار، کیونکہ میرا خاندانی پس منظر ذمہ دارہ بھی ہے، تجارت بھی ہے، درویشی فقیری بھی ہے، تو ذمہ دار ایسے زمین کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں فصل کے قابل ہے، فلاں کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کا اتنا ٹھیکہ بنتا ہے، اتنا نہیں بنتا۔ نظر سے دیکھتا۔ والد دادا پردادا کے باغات ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ باغ کی بولی ہوتی ہے، کتنے بے باغ کا ٹھیکہ جاتا ہے۔ ایک بابا تھا، اس نے جھولی میں نا پتے لیے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھ کے ایک پتا گن رہا تھا، میں چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد آ کے بولی میں بیٹھ گیا، سب سے زیادہ بولی اسی بابے نے لگائی، باغ اسی کو چلا گیا۔ پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے لگا میں ہر درخت کا پتا جو بڑا تھا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ثمر زیادہ ہے، جو چھوٹا تھا دیکھ رہا تھا اس میں پھل، ثمر کہتے ہیں پھل کو، اس میں پھل تھوڑا ہے۔ میں نے حساب لگایا، حساب کے مطابق کہا کہ اتنا میرا خرچہ، اتنا میرا حساب، اتنی میری آمدنی، لہٰذا یہ بولی۔ اماں رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تربوز لیا پر ہو بالکل سب سرخ میٹھا۔ میں ایک بندے کے پاس گیا تربوز پہ، کسی دور میں میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا بھی تھا، تو میں نے اسے کہا میں کہ تربوز دے، میٹھا ہو اور کاٹ کے دے۔ اس نے کہا لے جائیں آپ تسلی کریں۔ میں کہا اماں پھر کہے گی واپس لے جا، تجھے کہا تھا نا۔ میں کہنے لگے لے آنا، پھر میرے کبھی تجربے پہ اعتبار کر لیں۔ اس نے یوں ایسے زور لگایا اور مجھے کہنے لگا لاجواب ہے، میٹھا ہے، سرخ ہے، بہترین ہے۔ گیا تو ویسے ہی تھا۔ میں نے پوچھا کہا زندگی بھر یہی کام کیا ہے، ابے کا بھی یہی کام ہے، میرا تجربہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتی مئی کو بوڑھیاں بتاتی ہیں پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہاں چلتی مئی کو بتاتی ہیں۔ کہنے لگے انہیں پیر سجا پہلے رکھیا، یہ کھبا بعد وچ رکھیا، بیڑا پتر جمسی۔ پھرکی کو بتاتے ہیں بچے کی نا، یہاں ایک بالوں کا ایک سرکل ہوتا ہے پھرکی، اس کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ ہے یہ زندگی کی کچھ علامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو جھٹلائی نہیں جاتی، جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، جس پہ روحانی دنیا کھلے، جس پہ روحانی دنیا واہ ہو، روحانی پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ تو میں نے حج کے سفر میں چند بار پہلے بھی گیا ہوں، ایسے بندے دیکھتے چلتے، ایسے دیکھتے دیکھتے نا، بندوں کو دیکھتے دیکھتے
دیکھتے دیکھتے ایسے نظر آتا تھا کہ کالی دنیا ہے، کالا جادو ہے، کالے لوگ ہیں، کالے روگ ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید بہت بڑے محدث، بڑے اللہ والے فقیر درویش گزرے ہیں۔ وہ اپنے سر پہ ہمیشہ کپڑا اوڑھے رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ تو پوچھا کیوں؟ پر میری نظروں میں ہر بندہ انسان نظر نہیں آتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کفن چور سے پوچھا جس نے توبہ کی، تو اس نے میتوں کو کس حال میں دیکھا؟ کہنے لگے جنید، میں نے میتوں کو دیکھا کہ ان کے کفن، دفن، جنازے ہوتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب کملی والے کی دعا ہے کہ اللہ میری امتوں کی شکلیں مسخ نہ کرنا، تو مرنے کے بعد پھر اللہ اپنے مظاہر مناظر دکھاتا ہے۔ میں نے ہر شخص کی شکل، جانور، کتے، خنزیر، بندر کس کی دیکھی؟ بہت کم ہیں جو میں نے انسان دیکھے۔ میں طواف زیارہ کر کے، پرانی بات ہے، میں آ رہا تھا تو ایک ٹیکسی میں بیٹھا، ایک نوجوان آیا، اس نے ٹیکسی آ کے ایسے اندر گھسا دی تو اس کو غصہ آیا، کہنے لگا حیوان، عرب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، غصے میں اس نے حیوان کہا، اور آپ بھی غصے میں کہتے انسان بن، کبھی یہ نہیں کہا آدمی بن۔ غصے میں انسان کہتے ہیں، آدمی تو پہلے ہوتا ہے، ہر بندہ انسان نہیں ہوتا۔ آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی کنکر ہے۔ تو میں نے اپنی اس سفر میں کتنے اللہ والے تھے جن کو دیکھا، جن کے بارے میں سنا کہ وہ بھیڑ میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آخر دعا مانگی، اللہ مجھ سے کشف لے لے، اللہ لے لے، اللہ لے لے۔ وضو کے پانی میں دیکھ لیتے تھے کہ اس کے گناہ کون سے ہیں۔ غسل کا پانی اگر آ رہا تھا، حمام سے آ رہا ہوتا تھا بہتا ہوا، اس پانی کے اندر اس کے عیب اور گناہ نظر آ جاتے تھے۔ آخرکار اللہ سے کہا، اللہ مجھ سے یہ چیز لے لے۔ دنیا اس وقت کالے جادو میں گھری ہوئی ہے، اور وہ کالا جادو صرف انسانوں کا نہیں، انسانوں کا تھوڑا، جنات کا زیادہ، انسانوں کا تھوڑا۔ ہر بندہ اس کام پہ نہیں بیٹھا، ہر بندہ اس کام پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ہم نے یہ جادو کی رٹ لگائی ہوئی ہے، فلاں نے جادو کر دیا، جادو کر دیا۔ یہ تو جیب گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے ان لوگوں کے جو کالی پیلے لکیریں مار رہے ہیں، ان کی جیب گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ دیواروں پہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے جنات کا جادو، اور وہ جو حیرت انگیز طور پہ طاقت رکھتا ہے، ہماری رگوں میں پیوست ہے، رگوں میں پیوست ہے۔ رمضان میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں یوں اتر کے گیا تو ادھر کھڑا تھا، بالکل نڈھال، میری انتظار نہ کر سکا، بیچارہ جا کے سو گیا، گر پڑا۔ اس پہ جنات کی نظر بد تھی، طاقتور جنات کا جادو تھا۔ اللہ کی کلام سے پھر ٹھیک ہو گیا۔ ڈسے ہوئے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد حروف کی دیوار نہیں ہے، حروف کی دیوار نہیں، حروف کی، الف با اور یا تک، الف با سے یا تک، جس کو ہم دیسی زبان میں الف بے سے یہ تک، حروف کی دیوار ختم ہو گئی ہے۔ جب حروف کی دیوار ختم ہو جائے اور حرفوں کے لفظ ختم ہو جائیں، زندگیوں میں ان کی اوٹ، ان کی ٹیک، ان کی چھاؤں یہ ختم ہو جائے، پھر زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، عیش، عشرت، مال، دولت، چیزیں سب کچھ ہوتے ہیں، پر چین، سکون، راحت زندگی میں، کیفیت، چہرے پہ سکون نہیں ہوتا۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، جہاز کا انتظار تھا، میرے ساتھ ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ ذرا نظریں دوڑائیں، ان میں جو سب سے اچھے لباس والے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ان کے چہرے پہ کھچاؤ دیکھیں۔ بھائی سپیکر والے مہربانی کریں، ان کے چہرے پہ کھچاؤ دیکھیں۔
उनके चेहरे पे खिंचाव देखे, मैंने ऐसे देखा। अब कहा कि आप देखें कितने लोगों के चेहरे पे बिल्कुल पुरसुकून चेहरे हैं, बहुत कम नजर आए। वो क्लास, वो बिजनेस क्लास में है, वो आला लिबास में, उन्होंने 40-50 हजार का जूता, 1,00,000-1.5 लाख का जूता, लाखों करोड़ों की घड़ी, पर जिंदगी में चैन नहीं। ये चैन काली दुनिया छीन लेती है, ये सुकून काली दुनिया छीन लेती है, ये राहत काली दुनिया छीन लेती है। काले लोग छीन लेते हैं, काले रोग छीन लेते हैं, काला जादू छीन लेता है। क्यों? हमारे इर्द गिर्द लफ्जों की ओट नहीं है, हर्फों की। अलिफ बा से लेकर या तक की हर्फ, ये कुरान सारा हर्फों से मिलके बना तो है। आप क्या रस्मुल खत कहते हैं लिखना। हिंदी का रस्मुल खत देखें, चीनी का देखें, इंग्लिश का देखें, गुजराती का देखें, रस्मुल खत देखें। आपका रस्मुल खत उर्दू अरबी के साथ मिलता जुलता है बिल्कुल। अगर उस पे जेर जबर लगा लें वो अरबी बन जाता है। आपका रस्मुल खत बहुत महबूब रस्मुल खत है, ये खत उस्मानी है। हरूफ जिंदगी से निकल गए, सारा कुरान हरफों से मिलके बना, आका का सारा फरमान हरफों से मिलके बना, सारे अस्माए हुस्ना अलिफ से लेकर या तक मिलके बने, सारे मुबारक बोल अलिफ से या तक बने। हर्फ कातिल, हर्फ मसीहा, हर्फ दोस्त, हर्फ दुश्मन, याद रखिएगा। ये हरूफ दोस्त भी हैं, ये हरूफ दुश्मन भी हैं, ये हरूफ कातिल भी हैं, ये हरूफ मसीहा, दोस्त, मोहसिन, मसीहा, मुआलिज, मसीहा, मुर्दों को जिंदा करने वाला, ये हर्फ हैं। तलाक हर्फ तो है। और जो निकाह में इजाबो कबूल होता है कि इतने हजार, इतने लाख में आपका निकाह मैंने इतने हजार में फलां बिनते फलां से किया, आपने कबूल किया, जी मैंने कबूल किया, बस एक दफा कहना काफी होता है। ये हर्फ तो हैं, हर्फ दोस्त हैं, हर्फ दुश्मन हैं, हर्फ कातिल हैं, हर्फ मसीहा हैं। हर्फों के हिसाब से निकला है। सारी सूरत फातिहा हरफों से बनी हुई, सारी सूरत कुरैश हरफों से बनी हुई, सारे अज़कार हरफों से बने हुए हैं। हर्फ अलिफ बा से लेकर या तक ये सारे हुरूफ हैं, इनसे निकले हैं, इनसे निकले हैं। एक दरवेश के पास अंदरून सिंध में एक दरवेश रहते थे, हजरत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे सामने एक बंदा आया, आपने सिंधी में फरमाया बाबा जा, शहर में जा, 7 जुम्मे पढ़ के फिर मेरे पास आना, तेरा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गांव में जुम्मा तो होता नहीं, और उस दौर में गांव का निजाम यह होता था कि दिनों के सफर होते थे, खच्चर घोड़े ऊंट के सफर होते थे। आज भी जितने दूर अफ्तादा गांव हैं, कई ऐसे हैं जहां जुमे नहीं होते। अब वो बेचारा किस तरह किया गांव का सफर, 7 जुमे पढ़ के आया। यानी शहर में जुमे के दिन जाता होगा, और 7 जुमे पढ़ के जब शेख की खिदमत में आया ना सामने, और मैं जा, तेरा जादू टूट गया, तेरे मसले हल हो गए। और फिर फरमाया असल में मैं तुझे साहिब निस्बत लोगों की महफिलों में भेजना चाहता था। सारे मजमे में कोई एक दाना, कोई एक मोती ऐसा होता है जिसकी वजह से रहमत उतरती है, जिसकी वजह से अता उतरती है, जिसकी वजह से करम नाजिल होता है, और जिसकी वजह से उसकी बेबहा इनायात की बारिश होती है। और एक दाने या एक मोती उस मजमे में होता है, और उसकी वजह से सारे रंगे जाते हैं, आबाद और शाद हो जाते हैं। एक मोती ऐसा होता है। हर चश्मे दी कदर करी मत कई आब हयात होवे, हर फकीर दी कदर करी मचा कई दी खिजर हयात होवे। क्या पता किसी में खिजर हो। मैं जा, उस दौर में मजमे जुमे के होते थे, जा जाके इन 7 मजमों में बैठ के आ, यानी जुमा पढ़ के आ।
और उसका मसला हल हो गया। ये मजमे इनकी कदरदानी, इनमें अदब से बैठना, और खास तौर पे उन लोगों से कह रहा हूं जो इस मजमे में पुराने आने वाले हैं, ख्याल करना कदरदानी लुट ना जाए कहीं। हम अपने आप को, बाज लोगों को पकड़ पकड़ के मजमे में बिठाता हूं, इनको बिठाओ, और जब नहीं बैठते घरों में हादसे, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां होती हैं। वो नए आने वाले तलब की वजह से आगे जगह पे लड़ते हैं, और जो पुराने बेचारे जो हैं उनको बेइतनाई होती है, उनको परवाह नहीं होती। 6 नंबर हाल की सीढ़ियों में बैठ के अपनी महफिलें लगाते हैं, कोई उधर बैठा होता है, कोई उधर बैठ के अपनी, कोई किचन में बैठ के अपनी महफिलें लगाता है। और मुझे एहसास होता है कि ये मजमे से अगर दूर हुए, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, मजमे से अगर दूर हुए लुट जाएंगे। काली दुनिया खा जाएगी, काले लोग खा जाएंगे, काले रोग खा जाएंगे, काला जादू खा जाएगा। और फिर कह रहा हूं, काले लोग, काले रोग, काला जादू, जागते रहें, मेरी तरफ देखते रहें। काला जादू, काले रोग, इसका ताल्लुक सिर्फ इंसानों से नहीं है। इंसान सिर्फ चंद फीसद हैं, बाकी जिन्नात हैं जिन्होंने पहले दिन दावा भी किया है, वादा भी किया है कि हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। या अल्लाह, हमारे होते हुए इंसान को बनाने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया और अपने अमर से उसमें रूह फूंकी, या अल्लाह इसको बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने तुम एतराज करने वालों को इसके सामने झुकाना है, और आने वाली क़यामत तक के आखिरी फर्द को एक पैगाम देना है। और वो पैगाम ये देना है, जब आदम तो मेरा बन जाएगा, जिन्नात को तेरे सामने झुका दूंगा। और जब आदम तो मेरा नहीं बनेगा, तू जिन्नात के सामने झुकेगा, तू जादू के सामने झुकेगा, तू जादूगरों के सामने झुकेगा, तो उनकी सेवा और खिदमत करेगा, तो उनकी जूतियां सीधे करेगा। हाँ, मैंने देखा है और हो रहा है। अल्लाह ने क़यामत के दिन से पहले दिन से एक आवाज दी है कि इसको सजदा करो, इन जिन्नात को, इनको सजदा करो, इस आदम को सजदा करो। अगर इस आदम को सजदा कर रहे हो, भाई इस बंदे को उठाओ, मेरे सामने सो रहा है बार बार, इसी को जो पीछे मुड़ के देख रहा है। मैं कच्चा ड्राइवर हूं, चलो सुनाऊं। ये हमारे थे अभी, तो ड्राइवर कहने लगा, अरफात से बैठे मुजदलफा के लिए बस पे, रात फुटपाथ पे बैठे थे, वहां एक बाबा बैठा था, और अब उसके मैं पांव दबाना शुरू हो गया, शायद पोस्ट देखी होगी आपने। इंतजार कर रहे हैं, सड़कों में बैठे हुए, मजा आया यार, रोलेंदे 4 साल रोलेंदे। उम्मीद है आशिकों का मेरा ये लफ्ज समझ आएगा, यार रोलेंदे तो 4 साल रोलेंदे। हाँ रोलेंदे, कितना तेजा मसनद आ गया, तुसा शेखुल वज़ाइफ कितना गए, हाथ मिलावण, हाथ चुम्मण, हजरत साहब वहां के औरतें आ जल्दी। मैं पूछता, अम्मा कहती है पुत्र जल्दी आ। एक बुजुर्ग कहने लगे, मैं छोटा सा तो नहर पे नहाने गया, नहर वो थी, कई बच्चे डूब गए थे, तो अम्मा ने कहा बिस्मिल्लाह, वही मेरा पुत्र आए सत्ता जीवे। अम्मा जो हत्या आयम थे, अम्मा ने वाल रखा मेरे को, क्योंकि अम्मा अगर बिस्मिल्लाह ना आके मैं तो भज बन जा, अम्मा बिस्मिल्लाह ना कहती तो मैं भाग जाता, अम्मा के हाथ ना आता। फिर अम्मा ने मुझे पूछा कि कैसे नहर पे नहाने जाता है तू, ताकि आज वैसा वाल। तो यार रोलेंदे, अरफात के मैदान पे फुटपाथ पे बैठे हैं। फिर मैंने कहा भाई को पेटी ढूंढ के ले आ, गत्ता, नीचे रेत है और रेत गर्म है, धूप थी, बंदे बेचारे मर गए गर्मी में। अल्लाह के मेहमान अल्लाह के पास चले गए, गर्मी थी, लाखों में इतने लोग मर ही जाते हैं। और फिर जिसने अल्लाह के रास्ते की मौत मांगी है, जिसने अल्लाह के रास्ते की मौत मांगी है, वो सादतें मांगता है। इसलिए हमें किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। सच्ची बात बताऊं, आले सऊद हाजी का बहुत एहतराम करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। आप नहीं सोच सकते, होटल वाले, ये बस वाले डर रहे होते हैं कि थोड़ी सी शिकायत हुई तो हमारी हर चीज सील हो जाएगी। मेरे सामने एक ग्रुप वाले, मैं पता नहीं कहां बात कर रहा था, मेरी बात को संभाल के कल ना मैं पूछूंगा, वो कीमा ले गए, कहने लगे कि ये छोटा कीमा है, जबकि हमें नजर आता है बड़ा कीमा है। उन्होंने लेबोरेटरी चेक कराया, बड़ा कीमा था, ग्रुप बंद हो गया जिंदगी भर के लिए।
اچھا ہم وہاں بیٹھے تھے، کیا بات کر رہے؟ ڈرائیور کی بات کر رہا، دیکھو میں کہاں نکل گیا، جائیں لا یہ گلی ہو دے نال ٹور چلی، یہ میرا حال ہے۔ آتی تو باتیں ہیں نا مجھے اصل میں، باقی تو ہے ہی کچھ نہیں، باتیں جتنی کرا لیں مجھ سے۔ وہ نا تھکے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، عرفات سے وہیں گدے اٹھائے، بس میں ڈال کے سو گیا۔ خراٹے جو شروع ہوئے، ڈرائیور نے لائٹیں جلا دی، کہنے لگا 2 دن کا جاگا ہوا ہوں، اس کو کہو اٹھو سارے۔ خراٹوں کی آواز، میں نے مڑ کے دیکھا ایک بوڑھی اماں منہ کھلا ہوا خاں خاں کر رہی تھی، ادھر کوئی سو رہا، تھکے ہارے مارے کٹے، یار رولیں دے، یار رولیں دے، رول دے سارے تاج تخت وغیرہ جتنے تو وی آئی پی حج کر لے، یار رولیں ہے ایک دفعہ حج، جتنے وی آئی پی حج کر لے، ہیلی کاپٹر پہ کر لے، کر کے دیکھ تو صحیح۔ آخر لائٹیں چلا دی، اس نے کہا سب کو اٹھاؤ، میں 2 دن کا جاگا ہوا ہوں، میں سو گیا تو پھر سارے سو جائیں گے، تو بابا مہربانی کر نہ سوم، ورنہ میں لائٹیں جلا دوں گا۔ اب بولو کیا بات کر رہا تھا، سونے پہ تو میں اتنی باتیں کر گیا، اس سونے پہ۔ آدم کو سجدہ کرایا ہے، ان جنات کو کہا آدم کو سجدہ کرو، کیوں؟ اگر آدم کو سجدہ نہ کیا، آدم کو سجدہ نہ کیا تو قیامت تک کے لوگوں کو میں کیسے بتاؤں گا، جب تو میرا بنے گا یہ آدم تجھے سجدہ کرے گا، جب تو میرا بنے گا یہ جنات تجھے سجدہ کریں گے، اگر تو میرا نہیں بنے گا پھر تو ان کے پیچھے ہوگا اور غیر اللہ کے پیچھے ہوگا، اللہ کے غیر کی عبادت کرے گا، اللہ کے غیر کی بندگی کرے گا، اللہ کے غیر کو مانے گا، اللہ کے غیر کو پوچھے گا، اللہ کے غیر کو پھر کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ حروف اپنی زندگی میں شامل کریں، حروف الف سے لے کر با سے لے کر یا تک اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر حروف اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور ہمارے مزاجوں کے اندر یہ رس بس جائیں گے، یہ پورا کوٹ ہے، جو قرآن کے حروف ہیں وہ 29 ہیں، یہ پورا دیوار ہے، کوٹ ہے، ڈیفنس وال ہے، یہ حفاظت اور حصار کا نظام ہے، حفاظت اور حصار کا نظام ہے، ورنہ کالی دنیا آ جائے گی، کبھی رزق کھائے گی، کبھی اولاد کھائے گی، اور کبھی زندگی کھائے گی، کبھی نسلیں کھائے گی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، بیٹی بھی ڈھل گئی تھی بیچاری، کہنے لگی جب بھی مجھے کوئی خوشخبری ہوتی ہے، رات کو خواب میں دیکھتی ہوں کوئی میرا قریبی عزیز ہے، وہ آ کے مجھے کوئی خبر سناتا ہے موت کی، پھر گلے مل کے روتے ہیں ہم دونوں، اس کے بعد میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے، صبح اٹھتا ہوں تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور میرا ہر چیز ختم ہوتی ہے، آج تک اولاد نہیں ہوئی۔ کوئی چیز آتی ہے رات کو، خبر سناتی ہے فلاں مر گیا، فلاں تکلیف، پھر ہم گلے لگ کے روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، کہا جب میری آنکھ کھلتی ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پسینہ بدن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج تک یہی کچھ ہوا، اور جو امید ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، مس کیریج اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ڈسے ہوئے لوگ دیکھے، ڈسے ہوئے لوگ، چپ کر کے ایسے دیکھتا تھا، کشف تو ہوتا نہیں مجھے، اندازے میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ڈاکٹر کی مثال دے دی ہے میں نے، تربوز والے کی مثال دی ہے، زمین والے کی مثال دی ہے میں تو کوئی کشف وغیرہ نہیں پہنچی، سرکار تو ہوں نہیں، لیکن کچھ اندازے تو ہیں زندگی میری۔ 84 سے اس میدان میں نے قدم رکھا ہے طالب علم کی حیثیت سے، اور 24 ہو گئے، 40 سال کا ایک پورا ایک سفر ہے جو میرا ایک طالب علمی کا، آج تک طالب علم سیکھنے والا ہوں، لیکن یہ زندگی کے سیکھتے سیکھتے کچھ احساس ہوا ہے، لوگ کتنے ڈسے ہوئے ہیں، لوگ کتنے ڈسے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اندر روگ ہی روگ ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اور مشکلات ہی مشکلات۔ حروف سے زندگی ہٹی ہے، حروف سے ہم حرفوں سے دور ہوئے ہیں، اور حرف ہماری زندگی سے نکلے ہیں۔ جب ہماری زندگی سے حرف نکلے ہیں تو ہم
बेकार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, हमारी हैसियत खत्म हो गई है, कोई वारिस नहीं रहा, कोई वारिस नहीं रहा। हमारी जिंदगी से हर्फ निकले हैं, अलिफ से लेकर या तक हर हर्फ एक ताकत रखता है, हर हर्फ एक एनर्जी रखता है, हर्फ हर्फ में पैटर्न है, एनर्जी का कुव्वत है, ताकत है और पोशीदा कुव्वत है हरूफ में। ये हरूफ में पोशीदा कुव्वतों का राज बताऊं, देखना मैं एक तरफ आपके जितने भी साइन बोर्ड और दीवारों पे जो इश्तिहार हैं बड़े बड़े, इनमें चंद हरूफ ही होते हैं, चंद हरूफ। मैंने देखा एक बच्चा है फुटबॉल उठाए हुए है और फुटबॉल वॉलीबॉल है गालिबा, वॉलीबॉल को ना ऐसे ऊपर फेंक रहा है, ऊपर फेंक के उसके कदम भी जमीन से उठे हुए हैं। एक इश्तिहार देखा मैंने और नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ एक हर्फ लिखा हुआ है, रुकना नहीं थकना नहीं, और साथ एक चीज बनी हुई है, अगर ये खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, रुकना नहीं थकना नहीं। हर्फ ही तो है, ये दो हर्फ हैं, ये दो हर्फ हैं जिसकी वजह से करोड़ों की चीजें बिक जाती हैं, हर्फ ही तो है। लिखे हुए हर्फ तावीज तो है जिसकी ताकत और तासीर है, और लिखे हुए हर्फ ही तो है जिसका नाम कुरान है। वो तो वैसे कागज, कोरा कागज है, उस कोरे कागज पे मंत्र लिख ले तो शैतानी कुव्वतें तेरे साथ हैं जो तुझे आखिरत तेरी बर्बाद करने का जरिया हैं। उस कोरे कागज पे कलाम इलाही लिख ले तो नूरानी कुव्वतें तेरे साथ हैं जो तेरी आखिरत संवारने में तेरा साथ देंगी, दुनिया बनाने में तेरा साथ देंगी, अल्लाह को लाने में तेरा साथ देंगी, कमली वाले की गुलामी तक पहुंचाने में तेरा साथ देंगी। वो हर्फ ही तो हैं। इन हर्फों से दूर हो गए, इन हुरूफ को अपनी जिंदगी से निकाल लिया, इन हुरूफ को अपनी जिंदगी से निकाल लिया। मेरे यहाँ एक बाबा जी आए ब्राजील से, यहाँ चंद दिन तस्बीह खाने गुजारने, दुनिया का आखिरी किनारा जहां दुनिया खत्म हो जाती है। मुझसे टूटी उनकी उर्दू थी लेकिन साफ उर्दू नहीं थी। मुझसे कहने लगे, मेरे बेटे हमारी वहां एक और जुबान है, इंग्लिश ही बोलते हैं, वहां की जुबान कुछ और बता रहे थे, और जुबान है, इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को अरबी सिखाई है, उर्दू सिखाता हूं, अरबी और उर्दू के अल्फाज बराबर हैं, और कहा कि इन हरफों से शनासाई देता हूं। और मेरा एक बच्चा है, कहा कि वो बड़ा है, वो नहीं जानता उर्दू को पढ़ना देखना नहीं जानता, कहा कि मैं उसे अरबी के हर्फ लिख देता हूं, अलिफ से लेकर बा से लेकर या तक, और मैं कहता हूं बेटा अपनी गाड़ी के सामने इसको लगा ले, बस इसको देखते रहना, अपने दफ्तर में लगा ले, ऑफिस में, कहा बहुत अच्छी पोस्ट पे है कहीं, इसको देखते रहना, जहां तेरी नजर हो इसको देखते रहना। इन हर्फों का तेरे अंदर एक असर होगा, देखने से भी असर होता है, यकीनन होता है, हुरूफ को देखने से भी असर होता है। हुरूफ को देखने से असर तो होता है कि उनके करोड़ों की चीज बिक जाती है, आपकी जेब के पैसे उनकी जेब से चले जाते हैं, देखने का असर नहीं होता। भाई इनको उठा दो, देखने का असर नहीं होता, होता है, देखने का असर होता है। आप किसी चीज को देखें, यहां मेरी इस जगह, ये हमारे सामने साथ ही चिड़िया घर है लाहौर का बड़ा, वहां का शेर छूटता भागता हाँफता कांपता किसी तरह यहां पहुंच के सिर्फ मजमे को देख के कहे अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आज की महफिल में शामिल होने आया हूं, सुना है हजरत हज से वापस आए हैं, मैं भी दुआ मांगा अल्लाह कोई मेरे को भी हज करवा। शेर बब्बर आके यहाँ खड़ा हो जाए, सिर्फ आपका नजारा करे और आपकी जियारत करे। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। सिर्फ बब्बर शेर को देखने से क्या होगा? जो मुझ जैसा कमजोर आदमी है उसके पेशाब कपड़े तो वैसे ही फारिग हो जाएंगे ना, सिर्फ देखना। हमारे वहां सर्जरी का था, तो मैं जब पढ़ता था तो उसकी स्टिचिंग हो रही थी, एक बंदे को घोड़े की सा के ना वो बम लगा, वो बांस आगे जो होती है वो लगी, जो उसकी रान चिरी गई। तो हादसा हुआ तो पुलिस वाला साथ खड़ा था, हमारे जो प्रोफेसर डॉक्टर थे सर्जरी के, वो कहने लगे कि भाई आप बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा सर मेरी ड्यूटी है। उन्होंने कहा चलो ठीक है।
अब उसका जब पट्टियां हटाई ना तो उन्होंने खींच के पट्टियां बांधी हुई थी, वो तो रान सारी चिरी हुई थी और यूं खून उबलने लगा। तो प्रोफेसर साहब, मुझे तो तजर्बा नहीं था, बार बार पुलिस वाले को देखें, पता नहीं क्यों देखते हैं, पहले उसको कहा तो चला जा, उसने कहा सर हमारा मुजरिम है ये, ठीक है, यूं थोड़ी देर पर नीचे गिरा और उन्होंने बड़ी बेतवज्जी से उसको बेल दी, उन्होंने कहा इसको उठा के ले जाओ, बिल्कुल बेतवज्जी से। वो खून, वो उबलता जख्म, वो फटी जिस्म को ना देख सका। देखने से जिंदगी पे असर होता है। कहा हुरूफ को देख सिर्फ बस। कुरान को इसलिए देखना सवाब है, जमजम को देखना सवाब है, जमजम को पीना सवाब है, आका के गुंबद खजरा को देखना सवाब है, काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को अकीदत मोहब्बत से देखना सवाब है, मुर्शिद के चेहरे को, अल्लाह के वली के चेहरे को और देखना सवाब है, सिर्फ देखना। जिस नजर में अकीदत हो, वही नजर अबू जहल की थी, उसने देखा और 50 साल देखा। हैरत की इंतहा है, मक्की जिंदगी 50 साल है मेरे आका की और मदनी जिंदगी 13 साल है। उसने 50 साल देखा और जी भर के देखा, पर उसकी हर नजर में एतराज था, उसकी हर नजर में शक था, उसकी हर नजर में वसवसा था, उसकी हर नजर में कमियां थीं, उसकी हर नजर खोटी थी, उसकी हर नजर के अंदर ऐब देखना था। वो अबू जहल बना, हालांकि उसका लक़ब अबुल हशम था, अबुल हकम था, अबुल हकम दानाइयों का बाप, नाम तो हिशाम था, अबू जहल बन गया उसकी हर नजर में। और वही छोटा सा आदमी जिसका पीछे हस्ब नस्ब आज तक नहीं मिला, उसको बिलाल कहते हैं। उनके मुताबिक छोटा, हमारे यहाँ तो हमारे सरदारों का सरदार। और उसने अभी देखा, पर उसने ऐब की नजर से नहीं देखा, इश्क की नजर से देखा, मोहब्बत की नजर से देखा, एहतराम की नजर से देखा, अकीदत की नजर से देखा। देखा तो उसने भी। आज अबू जहल गाली बन गया और बिलाल मोहब्बतों और अकीदतों का महवर और मरकज बन गया। अपनी जिंदगी में हुरूफ को शामिल करें, हुरूफ को शामिल करें, और अपनी जिंदगी में अगर हुरूफ को शामिल कर लिया, आप दुनिया के कामयाब इंसान हैं इंशाअल्लाह। हुरूफ को शामिल कर, हर्फ आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द घेरा दे दे और ताकतवर से ताकतवर चीज जो है वो आपके करीब ना आ सके, ताकतवर से ताकतवर चीज आपके करीब ना आ सके। वो जादू की शक्ल में है, वो जिन्नात, वो नजर बद, वो हासतों का हसद, वो दुश्मन का शर। कितने हमारे नावाकिफ लोग हैं, कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नहीं होते, हमें होते हैं। अंग्रेजों की किताबों की किताबें हमने जमा की हैं और जमा कर करके अपने नेट की दुनिया पे डाली है और उसका नाम जादुई लाइब्रेरी रखा है और लोगों को कहा है आओ देखो कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद इन पुरस्कार चीजों को हमसे कहीं ज्यादा मानता है। हमारी कितनी नावाकफियत है। और उससे अगली नावाकफियत क्या है, मेरा शोबा नहीं, अमलियात की दुनिया एक पूरी साइंस है, एक साइंस है। मेरा शोबा ही नहीं, मैं अमलियात की दुनिया में मुंह शगाफियां कर रहा हूं, मेरा शोबा ही नहीं है। एक पूरी साइंस है, एक पूरा निजाम है अमलियात की दुनिया में। हुरूफ से दोस्ती करें और हुरूफ के साथ आपका जो भी वजीफा है, आप उसमें हर्फ जुड़े हुए हैं सारे। आपकी जो भी तस्बीह है उसके साथ हर्फ जुड़े हुए हैं, आपका जो भी लफ्ज है उसके साथ हर्फ जुड़े हैं। हर्फ सारे जुड़ के वो वजीफा बना है, हर्फ जुड़ के वो अमल बना है, हर्फ जुड़ के वो तावीज बना है, हर्फ जुड़ के वो एक नक्श बना है। दुनिया की जितनी जुबानों वाले हैं, 6000 से ज्यादा जुबानें हैं, 6005 कहते हैं, 6000 से ज्यादा पूरी दुनिया में जुबानें हैं। 6000 से ज्यादा जुबानों वाले अगर वो बोलेंगे जो मेरे कमली वाले ने बोला, अरबी के यही हरूफ बोलेंगे तो सवाब है। और अपनी जबान में इसका तर्जमा करके जितना बोलते जाएं, जितना कहते जाएं, उनको फायदा हो सकता है पर सवाब नहीं मिल सकता। सवाब वो होगा
जो अरबी के बोलों में है, जो अरबी मेरे आका की जुबान, अरबी मेरे अल्लाह की जुबान, अरबी कुरान की जुबान, अरबी अरब की जुबान, अरबी जन्नत की जुबान, अरबी कब्र की जुबान। कब्र में मुनकर नकीर जो हैं उनके बोल अरबी के होंगे, और हर बंदे की अपनी 6000 जुबानों में हर जुबान खत्म हो जाएगी और वो अरबी में ही मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देगा। ये हुरूफ हैं, हुरूफ तहज्जी, जो पहले दिन से हमने कायदा पढ़ा था, हरफों का कायदा पहले दिन से पढ़ा। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत मारते थे, अभी भी जिंदा हैं। जाता हूँ उनके कदमों में बैठता हूँ, सर से उतार के ना पगड़ी टोपी, कहता हूँ उस्ताद जी सर पे हाथ तो फेर दें। बाबा जी बूढ़े, मारते भी थे, बहुत ज्यादा मारते थे। 5वीं 6वीं तक उनके यहाँ पढ़ा मैं। 5वीं 6वीं में कितनी उम्र होगी पता नहीं मेरी, उनके यहाँ मैं 5वीं 6वीं में पढ़ा। उनका एक बेटा होता था, मजजूब था, मेरे साथ पढ़ता था, मेरी हम उम्र। अलिफ अनार का अलिफ पा का कायदा जो है वो फाड़ देता था। आने का 1.5 आने का कायदा आता था, फिर वो फाड़ देता था। फिर उन्होंने क्या किया, उस दौर में चौकोर शापर होते थे, अब भी शापर होते हैं चौकोर, अब तो शापरों की शक्ल में है, लिफाफे होते थे, मोमी लिफाफे कहते थे। मोमी लिफाफे में हर वर्के को इलादा सी दिया मशीन से, फिर उसका कायदा बना दिया कि ये कागज फाड़े ना। उसने क्या किया, शापर फाड़ के उसमें पानी डाल दिया, सारे कागज गल गए। शापर फाड़ा, उसमें पानी डाल दिया। ये अलिफ से हमारी शनासाई पहले दिन से हुई थी, अलिफ से शनासाई। आए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अगर हुरूफ के साथ शनासाई खत्म कर दे, जिंदगी बेहर्फ हो जाएगी, जिंदगी बेवर्क हो जाएगी। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जिंदगी बेहर्फ हो जाएगी, जिंदगी बेवर्क हो जाएगी, जिंदगी गैर मुजल्लत हो जाएगी, और वर्क जिंदगी का बिखर जाएगा, हर्फ जिंदगी का बिखर जाएगा। और फिर हमारी दास्तान कहने वाला कोई नहीं रहेगा, अगर हरफों की दास्तान और हरफों की दुनिया से हमने मुंह मोड़ा। ये वजीफा हर्फ तो है, हरीफा हर्फ तो है। हम कहते हैं या फत्ता हो सिर्फ उन दिनों में मजमे से पढ़वाएं 8-10 दफा, और कहते हैं कामयाबी का सेहरा गले में डाल। भाई सारा दिन पढ़, तेरा खानदानी विरसा है बाबा, सोच मदीने से तो आया है और दुर्वेश तेरा खानदानी विरसा है ये, और तेरे बड़े कहां से सफर करते करते कहां कोहसारों पे पहुंचे, और या फत्ता तो है भी अल्लाह वाले खानदानी विरसा। बंदा कहता ना, बाकी दिनों का हाल मुझसे ना पूछ। हरफों की दुनिया देखें। अब देखें, मैं एक हर्फ बोल रहा हूं, आपने हर हर्फ के साथ मैं उस हर्फ की तासीर करूंगा, आपने उस तरफ तसव्वुर करना है। गौर से समझिएगा जरा, हर हर्फ और हर हर्फ की तासीर। मैं हुरूफ तहज्जी के हुरूफ पढ़ूंगा, अब जरा तवज्जो से बैठिएगा। मैंने हुरूफ की दुनिया को थोड़ा सा खोला है। अच्छा, फिर आखिर में ये मैं आपको एक अमल करवा रहा हूं, तवज्जो से अमल से बैठिएगा। ख़वातीन जिनकी बातें खत्म हो गई हैं, अब वो भी तवज्जो कर लें। जिनके मोबाइल की मेमोरी खत्म हो गई है, कह रहे एक मैं, एक मेरी तन्हाई, एक मेरा मोबाइल, एक चार्जर भी जरूरी है। एक मैं, एक मेरी तन्हाई, एक मेरा मोबाइल, एक मेरा चार्जर, बाकी खत्म। हमारे यहाँ एक मई होती थी बूढ़ी, नाम उसका नूर जहां था, नूरी कहते थे, लेकिन आंखों से नाबीना थी, नाम नूरी था। तो वो ना बैठे बैठे शेर पढ़ती थी, अजीब गरीब शेर पढ़ती थी माई। खैर छोड़े, फिर वो शेर याद आ रहे हैं। अब मैं ना हुरूफ बयान करूंगा, अलिफ बयान करूंगा, अलिफ के साथ अलिफ जाके अलिफ की फिर ताकत बयान करूंगा, फिर उसकी ताकत जहां आके लगेगी उस जगह को बयान करूंगा। जहां मसलन मैं अलिफ बयान करूंगा, इसके साथ बोलूंगा शर्तैन, और शर्तैन इसकी तासीर दोनों कंधों पे जाती है, दोनों कंधे मजबूत होते हैं। और कहते हैं ये वो बंदा है जिसके शोल्डर
कंधे इसके मजबूत हैं। इससे पता है मुराद क्या होता है? इसकी औलाद है और इसके हम मिजाज है, इसका साथी है, इसके कंधे मजबूत हैं। अरब की दुनिया में उसको शर्तैन कहते हैं। अच्छा, ये वो बंदा है जिसके कंधे मजबूत हैं। मसलन ये हर किस्म की जिंदगी में हर मैदान में कामयाब है। कंधे मजबूत हों तो हर मैदान में कामयाब है। अच्छा, ये वो बंदा है जिसके कंधे मजबूत हैं, यानी हर वजन उठा सकता है हर भीड़ में। जिसके कंधे कमजोर हों वो तो दब जाएगा ना। हम तवाफ कर रहे थे, वो छोटा औन मोहम्मद बेचारा यूं ऊपर करता था, सांस ही नहीं आता था। मैं कहा ये बेचारा परेशान है। मैं कहा निकलो अंदर से। रश था, बंदे पे बंदा आया हुआ था, और खास तौर पे सद्दा जी में मेरे काले सोने सोने अफ्रीकन जब ये आते थे, अल्लाह अकबर, ये उधर और ये उधर, मई भी मई, ये उधर और ये उमर उधर। अल्लाह ने बनाया है। एक हाम की औलाद है, एक साम की, साम सन्स, सारे गोरे साम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे साम, ये साम के सन्स हैं, बेटे हैं। एक है हाम सन्स, वो सारे काले, उनमें हम भी शामिल है, हम भी हाम हैं। कोई सांवले कोई काले। अब मैं हर्फ बोलूंगा, अलिफ कहूंगा ना तो साफ अलिफ की तासीर बयान करूंगा, और तासीर के साथ मैं जब कंधे कहूंगा तो आपकी तवज्जो कंधों पे जाएगी और उस अलिफ की ताकत कंधों को जाके मजबूत करेगी। फिर मैं बा बोलूंगा, बा के साथ उसकी तासीर बोलूंगा, फिर उन तासीर के साथ उसके फायदे बयान करूंगा। आपकी फौरन बा की जो तासीर बयान करूंगा और उसके फायदे बयान करूंगा, आपकी नजर तवज्जो फौरन, सिर्फ तवज्जो जाए, बस तवज्जो से बैठेंगे तो तवज्जो जाएगी, है तवज्जो से बैठेंगे तो तवज्जो चाहेगी। अच्छा, जब ये तवज्जो चाहेगी ना, यही तवज्जो होती है जो काली दुनिया को तोड़ के, काले जादू को तोड़ के, काली दुनिया को और काले जादू को तोड़ के रख देगी। और आखिर में मैं एक हरूफ का छोटा सा राज दूंगा जो सारे हरूफ का खुलासा होगा। छोटा सा राज दूंगा। ये जो अमल करा रहा हूं, ये अमल दिन में 5 दफा करना है। आगे एक अमल कराऊंगा, वो दिन में 40 दफा करना है। फिर एक और अमल अभी कराऊंगा, वो दिन में 40 दफा करना है। फिर जाके इनकी तासीर मिलेगी। आप अगर दिन में 40 दफा ना करें, दिन में 1 दफा भी ना करें, आज 1 दफा कर लें, जिंदगी में सिर्फ 1 दफा कर लें और मुझसे हरफों का एक राज ले लें आखिर में, तो ये समझ लें कि रोजाना 40 की तासीर भी पाएंगे और उसकी रोजाना 5 की तासीर भी पाएंगे, और फिर 40 नहीं 40,000 भी हो तो उसकी तासीर पाएंगे इंशाअल्लाह। जो मैं आखिर में आपको एक राज दूंगा, हरफों का राज, मुख्तसर, बिल्कुल मुख्तसर। लोग तो बड़े कमजोर हैं, इनको मुश्किल मुश्किल वजीफे, मुश्किल मुश्किल अमल, मुश्किल मुश्किल चीजें बताएं, कब तक बताएंगे? उम्मत तो फर्जों से चली गई, फर्ज तो फर्ज ऐन से चली गई। उम्मत तो बड़ी दूर निकल गई, तो इनके लिए आसानियां दो। क्या दो? आसानी। और जहां आसानी है जरूर दो, छुपाओ नहीं। अब दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब मैं हुरूफ को बयान कर रहा हूं और मेरे साथ पढ़ेंगे आप अलिफ। अब इसकी मैं शर्तैन बयान करूंगा, वो आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ हर्फ साथ मेरे जरूर पढ़ना है। शरतैन, और शरतैन इसकी तासीर कंधों पे जाएगी। अब आपने फौरन कंधों का तस्वर कर लिया। अब बा पढ़ें। बतनैन, ये इसकी तासीर पेट पे जाएगी। पेट की जितनी बीमारियां, पेट के जितने रोग, पेट की जितनी तकलीफें पेट में आते हैं, पेट में जो भी पेट के अंदर का निजाम है, ये बा की तासीर है। अब बोलें जीम, ये इसकी तासीर जो है ये सरिया है, सरैया 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 इसकी तासीर है। और इसके फायदे क्या हैं? ये सर की चोटी के ऊपर, सर की चोटी के ऊपर ये अल्लाह पाक ने क्या किया? जीम का हर्फ लिख दिया, और जीम के हर्फ लिखने से वो आसमानों के ऊपर से जब बलाएं आती हैं तो इससे टल जाएंगी, रहमतें इसमें जज्ब हो जाएंगी।
पर मैं 70,000 बलाएं रोज आती हैं, 70,000 रहमतें रोज उतरती हैं। बलाएं किसके लिए हैं, रहमतें किसके लिए हैं? जो बंदा ये जीम का लफ्ज मैं पढ़ रहा हूं और आपने पढ़ लिया और सर की चोटी का तसव्वुर कर लिया, उसके तासीर हमेशा आपकी जिंदगी पे सर पे रहेगी। जो बलाएं, आफात, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, नाकामियां, हादसात, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, ठोकरें, रास्ते बंद, गलियां बंद, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, एक मुकदेनी बेवल पैगन। अगर जिंदगी में ये रहे हैं तो जीम और ये सर की चोटी पर। अब मैं अगला लफ्ज पढ़ रहा हूं, दाल, ठीक है? ये दबरान, पीठ के पीछे की आखिरी हड्डी जिसको कमर कहते हैं, जहां चुक पड़ती है, जहां मोहरे हिलते हैं, उसका तस्वर आप कर लें। अब मैं एक हर्फ और पढ़ रहा हूं, वो है हा, जिसे हम हे कहते हैं, और हनका, और ये हनका जो है ये अगली सीने की ये हड्डी, सीने की ये हड्डी जिस पे दो हंसलियां आके हड्डी की मिली हुई हैं, हंसलियां मिली हुई हैं। और जो बंदा पेशाब करते हुए सीने की इस हड्डी को, ये गर्दन जहां खत्म हो रही है, आपका गर्दन खत्म हो रही है और आगे सीने की हड्डी शुरू हो रही है, जो बंदा पेशाब करते हुए इसको हिलाएगा, कभी गुर्दे फेल नहीं होंगे, कभी पेशाब नहीं रुकेगा। और जिसका पेशाब रुक गया हो वो इसको ऐसे ऊपर से नीचे हिलाए। मैं ज्यादा देर नहीं हिलाऊंगा, अभी मुझे पेशाब आ जाएगा। हाँ, हकीकतन ये टोटका भी साथ याद आया, देता गया हूं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और पुरानी हमारी इक्सीर आजम, रमूज आजम, मुहीत आजम, नैयर आजम, कराबादीन आजम, उन पुरानी किताबों में यह राज लिखा हुआ है कि जो बंदा पेशाब करते हुए या जिसका पेशाब रुक गया है, जो बंदा ये हड्डी जहां शुरू हो रही है, आपकी गर्दन आगे की शक्ल, आगे आपकी दाढ़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे जहां से हड्डी शुरू हो रही है, यहां से लेकर आधे सीने तक ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको हिलाएगा, हिलाते ही उसका पेशाब खुल के आएगा, गुर्दे फेल नहीं होंगे, पथरी नहीं बनेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, यूरिया यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और उसका पेशाब के अंदर की बीमारियां नहीं होंगी, जिसको गुदूद है वो तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये हैरत अंगेज चीज है, ये बहुत जबरदस्त टोटका है, मैंने आपको दिया। अब आप पढ़ें वाओ, इसका नाम, इसकी तासीर है हंद, और ये आपके नाफ के लिए है। नाफ की जितनी बीमारियां हैं, नाफ तल जाना है, नाफ उभर जाना है, नाफ का धंस जाना है, नाफ का निकल आना है, और नाफ के अंदर जितनी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी इस हर्फ की ताकत से खत्म। अब अगला लफ्ज है जा, इसे जे कहते हैं, जा लफ्ज है, जा, ठीक? इसका ताल्लुक नाक के बांसे से, यह नाक है, इससे नाक की बीमारियां भी खत्म, और अल्लाह करम अपनी रहमत और इस हर्फ, कुरान के इस हर्फ की बरकत से जिंदगी में अल्लाह जिल्लतों और नाक कटने से बचाएगा। मैंने ना एक अमल रह गया था, उसके लिए फिर खसूसी हरम गया, काबा का तवाफ किया, खसूसी गया, और 3 चुल्लू उठा के सर पे डाले। एक रिवायत बता दूं आपको, पहली दफा बता रहा हूं, अब तक बता नहीं सका, भूल गया, रिवायत है, पर मैं जो 3 चुल्लू जमजम के सर पे डालेगा, 3 चुल्लू भर के, एक फिर दूसरा फिर तीसरा सर पे डालेगा, अल्लाह उसे रुसवाई से बचाएगा, अल्लाह दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से बचाएगा। और मैं दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से जमजम की यह ताकत का टोटका मैंने आपको बताया, पुरतासीर है। मैं इसके लिए मैं गया फिर हरम में स्पेशल, और गया और जाके फिर जमजम वो डाला सर के, एक चुल्लू डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला। अल्लाह, तो जा पढ़ लिया, इसकी तासीर जरा है, जरा, और ये किसके लिए है? नाक के लिए। हाँ,
नरहा, नरहा, नरहा। और इसकी तासीर एड़ी के लिए, एड़ी। इंसान की, एक साहब थे, अपने मुखालिफिन की एड़ी का ऊपर का हिस्सा कटवा देते थे, बस कुछ नहीं करते थे। इंसान की टांगें सूख जाती हैं, एड़ी के पीछे जो हिस्सा होता है, एक रग होती है, बस वो कटवा देते थे। खुचियां कहते हैं, खुच, उसके पीछे से वो हिस्से कटवा देते थे। ये उसकी हिफाजत हो रही है, किस हर्फ से? हा से। तो ये दाएं हाथ की छोटी उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली, ये उंगलियां जिंदगी में हमारा साथ देती हैं। इन हाथों को पकड़ने के लिए भी एक हाथ होना चाहिए। अगर मेरा हाथ ही नहीं, मेरी उंगलियां नहीं, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? और फिर मेरा हाथ और उंगलियां नहीं, मैं किसी का हाथ कैसे पकड़ूंगा? मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। तेरे कुदरत का हाथ, तेरी रहमत का हाथ, तेरी ताकत का हाथ, तेरी अता का हाथ, और तेरे कमली वाले का हाथ, तेरे आले रसूल का हाथ, मोहम्मद आले मोहम्मद का हाथ, असहाब रसूल का हाथ, औलिया का हाथ, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। 7 साल दौरे चरखता सागिर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। इश्क वालों की बदल जाती है, जो सच्चा इश्क, सच्ची तलब लेके आए, जिसकी नजर में इश्क हो। अबू जहल ने 50 साल देखा कमली वाले को, पर सच पूछे इश्क की नजर से नहीं देखा, अकल की नजर से देखा। अकल 100 वसवसे, 100 सोचें और दाएं बाएं की आवाजें सुनवाती है, और इश्क कहती है जो भी आए ईवी सजन वाह वाह ते ऊवी सजन वाह। इश्क में फुटबॉल बन जाने में मजा आता है, और अकल में थोड़ी सी भी इकराम एहतराम या आपके अलकाब और आपकी अंदर का जो बैठा है खान चौधरी, वो अंदर जो बैठा हुआ है, उसमें छोटी सी आंच आए तो वो कहते ये पड़ा है तुम्हारा तस्बीह और ये पड़ा है तुम्हारा तस्बीह खाना, न जा मस्जिद न कर सजदे वजू के तोड़ दे कूजे। आए हम अगले हर्फ का सफर जारी रखते हैं। अब हमारा अगला हर्फ है या। जबीतिया, जबीतिया इसकी तासीर है, और ये छोटी के साथ दरमियानी उंगली को ताकत देती है। और सिर्फ ये उंगलियों को ताकत नहीं देती, इस वक्त उंगलियों को दबा के एक पूरा इलाज है, एक थेरापी है, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक पूरी थेरापी है, एक इलाज है। उंगली का कौन सा जिस्म का कौन सा उंगली का कौन सा हिस्सा दबाएंगे तो कौन सा जिगर ठीक होगा, कौन सा दिमाग ठीक होगा, कौन सा हराम मगज ठीक होगा, कौन से पट्टे ठीक होंगे, कौन सी नजर। हाँ, ये तो यकीन आता है कि एक उंगली से ऐसा होगा। ये हर्फ जाके इस उंगली को ताकत देता है। वो एक उंगली को ताकत नहीं, वो पूरे जिस्म के एक एक हिस्से पे वो उंगली की तासीर फिरती, फैलती, बढ़ती चली जाती है, और हत्ता कि इंसान के जिस्म मुकम्मल सेहत, रूहानी ताकत, आफाकी कुव्वत, रूहानी ताकत, आफाकी, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मैं तीसरी दफा फिर दोहरा रहा हूं। अहम चीज होती थी तो मेरे आका 3 दफा दोहराते थे, रूहानी ताकत और आफाकी कुव्वत देती है। अगला लफ्ज है काफ, किताब वाला काफ। हाँ, इसकी तासीर ज़ोहरा है, ज़ोहरा, और इसका फायदा दरमियान वाली उंगली छोड़ के जो बड़ी उंगली है, इसका फायदा यही होता है बड़ी उंगली में। अगला लफ्ज है लाम, सरफा, सरफा इसकी तासीर है, और यह शहादत की उंगली को जाके मजबूत करती है। अगला मीम है, मीम, हा 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 हा, मीम मोहम्मद है, मीम मक्का है, मीम मदीना है, मीम महमूद है। मीम, नीम के साथ कायनात के राज हैं। ये अंगूठे को जाके मजबूत करती है। इंसान के हाथ में सिर्फ अंगूठा कट जाए, हाथ बेताकत हो जाता है, हाथ पे कुव्वत, चारों उंगलियां एक तरफ, अंगूठे की ताकत एक तरफ होती है। अगला नून है, ये दोनों पांव की उंगलियों को मजबूत करती है, दोनों पांव के अंगूठों को मजबूत करती है, और इसकी तासीर का नाम सम्माक है, सम्माक। अगला हर्फ सीन है,
इसका ताल्लुक आंखों से है। ये आंखों को जाके, आंखों में नूर, आंखों में हरारत, आंखों में शरारे, आंखों में तासीर, आंखों में कुव्वत, आंखों में कश्फ, आंखों में कमाल, ये जिंदगी का निजाम आंखों के साथ जुड़ा हुआ है। आप आंखें हैं तो मुझे देख रहे हैं, आंखें हैं तो मैं आपको देख रहा हूं। अगला लफ्ज़ आइन है। इसकी जो तासीर है वो जुबाना है और इसका फायदा कान पे है। ये कान पे जाके जिंदगी के कान को तासीर देता है। फिर यही कान अल्लाह का कलाम सुनेंगे, यही कान सलामत रहेंगे, यही कान फिर कमली वाले का फरमान सुनेंगे, यही कान दरूद पाक पढ़ेंगे सुनेंगे, और यही कान फिर माँ बाप के बोलों को वजन दे के सुनेंगे, और यही कान मुर्शिद की बात को हर्फ आखिर समझेंगे, यही कान फिर शक व शुबा से दूर हो जाएंगे, और यही कान सेहतमंद होंगे। फिर कानों की तकलीफ मेडिकली जितनी भी हैं, कानों की बीमारियां खत्म। अगला लफ्ज फा है। फा ये भवों के दरमियान की जो जगह है, पिशानी, जहां से नूर निकलता है, ये यहाँ नाक खत्म हुआ, भवों के दरमियान की जगह जहां ये हिंदू तिलक लगाते हैं, बिंदिया तिलक, ये यहाँ पिशानी से नूर निकलता है। ये हिंदुओं का भी अकीदा है नूर का, इसलिए सिंदूर लगाते हैं, यहाँ सुर्ख होता है। उनका भी अकीदा है कि इसी से नूर निकलता है। मैं साधु बेले में जब कश्ती में गया, वहां हिंदू के सदियों पुराने मंदिर हैं हिंदियों के, तो उन्होंने मुझे दरवाजे पे, बहुत हिंदू ने मोहब्बत की खुशामदीद कहा और फिर दिखाया। पुरानी सिलें थी, पुरानी मार्बल की, उन पे जन्नत बनी हुई थी। जन्नत में कोई बैठा गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है उनके अकीदे के मुताबिक, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खा रहा है, और साथ ही जहन्नम बनी हुई थी, और जहन्नम में अजाब, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी ये हमारी जन्नत है, ये जहन्नम है। जलाते भी इसलिए हैं ताकि इसके सारे पाप जल जाएं, इसके सारे गुनाह जल जाएं, इसके सारे ऐब जल जाएं, और ये अल्लाह के पास पाक साफ होके जाए। उनका अकीदा अपना है। कहने लगे, सरकार कहने लगे, एक बंदा हमारा दोस्त था, मुसलमान का जो है कोई बड़ा फौत हो गया, वो हिंदू जो है उसकी सारी तजहीज़ और तकफीन में दोस्त था, शामिल हुआ। तदफीन के बाद कहने लगा, ये कोठे वाली मौत मुझे भी चाहिए। कोठे वाली मौत, कोठा बनाते हैं, कब्र कोठा बनाते हैं, इज्जत से कंधों पे उठाते हैं, इज्जत से अंदर रखते हैं। ये कोठे वाली मौत मुझे भी चाहिए। कहा वो कलमे के बगैर नहीं मिलेगी, कहा उसके लिए मैं कलमे पे हाजिर हूं, और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे की तजदीद हो गई और ईमान की तजदीद हो गई। और मैं मजमे में जो ईमान की तजदीद करता है, मजमे में अल्लाह पाक सारे मजमे को क़यामत के दिन गवाह बनाएगा, मेरा बंदा इसने मजमे में मेरा कलमा ईमान की तजदीद की थी, और मजमे में मुझे माना था, और मेरे हबीब को माना था, और मुझे ला शरीक माना था। अब भी कोई शक है, सारे मजमे आप बैठेंगे, बोलेंगे मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, कि अल्लाह कोई शक नहीं। फरमाया शक नहीं, जाओ मेरे बंदे ऐसा करो, यही इसका कलमा तराजू में रखो, इसके पहाड़ों जितने गुनाह एक तरफ रखो। कलमा जब तराजू में रखते ही तराजू भारी हो जाएगा। चाहे 7 समंदर रख दें, चाहे 7 जमीन रख दें, चाहे 7 आसमान रख दें, चाहे सारे पहाड़ रख दें, चाहे सारे के सारी चीजें रख दें, ये कलमा भारी होगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे देखो इस कलमे की ताकत, जा हंसता मुस्कुराता जन्नत में चला जा। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की तजदीद कर ले। सुभान अल्लाह, कैसे मुबारक मजमे हैं आपके, कैसे मुबारक कदम हैं जो ये मजमे दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं। ये तस्बीहाने के मजमे सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, हर फितने से करीम बचाए। आए आगे चलते हैं, किस हर्फ तक पहुंचे थे? हाँ, अब अगला हर्फ हमारा स्वाद है। स्वाद है, और इसकी जो तासीर है वो है कुलूब।
और इसका फायदा जुबान पे है। हाँ, एक साहब मेरे पास आए फैसलाबाद के, कहा जुबान का कैंसर हो गया, कहते जुबान काटनी पड़ेगी। जुबान कट गए तो मैं बोल कैसे सकूंगा, सारी जिंदगी गूंगा, रोए रोए रोए। मैंने कहा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है ना उसको पढ़, पर पागल होके पढ़। रब्बिन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। मैं कहा पढ़ और पागल होके पढ़। क्यों? मैं इस दुआ को, अय्यूब अलैहिस्सलाम जहां बीमार थे, मैं उस गार के अंदर तुर्किया के, जहां शाम के बॉर्डर में, फिर शाम में भी जाना हुआ, वहां मैं पढ़ के आया हूं। एक दफा नहीं, एक दफा से दूसरी बार भी पढ़ के आया हूं। अच्छा, यकीन जानिए उसने पढ़ना शुरू कर दे। डॉक्टर ने कहा था फलां तारीख है, उन्होंने डेट दी थी, तेरी जबान काट दी जाएगी। अगर जबान ना काटी, अगर जुबान ना काटी तो ये कैंसर बढ़ के तेरे दिमाग पे चला जाएगा। बस उसके बाद कहानी खत्म है। असल में विजदान चाहिए, इश्क चाहिए। वजीफा जिसका भी हो ना, अगर वजीफा बताने वाले का यकीन नहीं है, आज मेरी बात याद रखना, इसलिए मेरे आका, मैं हुजूर की जालियों मुबारक के सामने ऐसे गया तो मेरा सर नीचे हो गया। आज भी जालियों पे लिखा है, ख्याल करना ये जालियों के अंदर जो हस्ती सो रही है, मोया हुआ नहीं है, सोया हुआ है। लफ्ज समझ गए? मोया हुआ नहीं, सोया हुआ। जो हस्ती सो रही है, इनसे ऊंची आवाज न जाए तुम्हारी, ख्याल करना। ला तरफा अस्वातकुम फौका अदब। आज भी जाली मुबारक पे लिखा हुआ है, अदब सिखाया है। अगर हस्ती का अदब ना हो तो वजीफे की तासीर नहीं होती। फिर बाप तस्वीर पढ़ता रहे और बेटे के अंदर अदब ही नहीं है, तलब ही नहीं है, तड़प ही नहीं है, तो फिर वो चीज कट के रहेगी। उन्होंने बहुत विजदान से पढ़ा। कुछ अरसे के बाद मिले, वो कहने लगे वही जुबान है, आज वही जुबान है। कहा वो वजीफा जुबान से जाता नहीं, मैं तो कैंसर मेरा ठीक हो गया, जुबान नहीं कटी। मैंने कहा जिस वजीफे की बरकत से कैंसर खत्म हुआ, उसको पूरी दुनिया के मरीजों के लिए पढ़ा, पूरी दुनिया के दुखियारों के लिए पढ़ा। जिस तस्बीह की वजह से ये मसला जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत इतना कमाल मिल गया फिर भी हाथ में तस्बीह है। फरमाया जिस तस्बीह की बरकत से कमाल मिल रहा है, फिर उसको छोड़ दूं क्या? मैं क्यों छोड़ूं? हाँ जी, कौन सा हर्फ? अब हमारा हर्फ है काफ, दो नुक्तों वाला, तो उसको कौफ कहेंगे। काफ, कौफ। हाँ, अरबी के मखारिज हैं, अरबी के, अरबी भी नहीं, अरबी। असल लफ्ज हुसैन नहीं है, हुसैन है, हुसैन। ओ, अरब कभी हुसैन नहीं बोलेंगे, हुसैन कहेंगे, हुसैन। सुभान अल्लाह। इसका जो इसकी तासीर है उस वो शोर है, और इसका जो फायदा है वो दोनों अतराफ हैं पेट के, और दोनों अतराफ में गुर्दे हैं। अतराफ, पेट के जो दोनों अतराफ हैं, क्या है पेट के दोनों? भाई मेरी तरफ देखो, पेट के दोनों क्या है? हाँ, अतराफ हैं। और अगला हमारा हर्फ है रे, जिसे रा कहते हैं, रा, और इसकी तासीर नहाइम है, नहाइम। और ज़ेरे नाफ की जितनी जिंदगी है ये उसके साथ इसका ताल्लुक है, रा के साथ ताल्लुक है। और अगला हर्फ शीन है, जल्दा, जल्दा, और इसका ताल्लुक जिल्द से है। किससे है? जिल्द। जितनी भी हमारी स्किन है, जिल्द है, जिल्दी बीमारियां हैं, जिल्द का जिंदगी के साथ ताल्लुक है, और हमारे जिल्द के जितने मसाइल हैं जिल्द से। अगला लफ्ज हमारा ता है, ता, जाबे है। इसका ताल्लुक हमारी सुरीन के साथ है, सुरीनों के साथ, जिस्म का पिछला हिस्सा, सुरीनों के साथ इसका ताल्लुक है। मैंने एक साहब को देखा, पांव के बल बैठे हैं। क्या हुआ? कहा जो अंदर हड्डियां होती ना, सुरीन की हड्डियां भुरभुरी हो गई हैं, गोश्त सुकड़ गया है, बैठ नहीं सकता, बैठता हूं तो चीखें निकलती हैं, बैठ नहीं सकता। और जिस्म मेरा गोश्त सुकड़ गया है, खत्म हो गया है।
اللہ اکبر. اگلا لفظ ہمارا سا ہے. بلعا اس کی تاثیر ہے. بلعا کیا ہے اس کی تاثیر؟ بلعا اس کی تاثیر ہے. اور یہ ہماری یہ گردن جو ہے نا، پچھلی گردن، سر کے آخر سے گردن سے لے کر گردن کی نیچے والی ہڈی تک، یہ سارا اس کے ساتھ تعلق ہے. یہ شخص کی کبھی گردن زنی نہیں ہوگی. کوئی تلوار سے گردن نہیں کاٹ سکے گا، کوئی خنجر، کوئی تیر، کوئی گولی. اور اس کی گردن کو رب کبھی جھکائے گا نہیں. رب کبھی شرمندگی، ندامتوں سے بچائے گا. رب کبھی ناگواریوں سے اور رسوائیوں سے بچائے گا. اگلا لفظ خا ہے. ہاں، اس کی تاثیر سعود ہے. سعود اس کی تاثیر، اور اس کا تعلق ہمارے مثانے سے ہے. میں نے ایک صاحب سے سنا، بہت بڑے سیاسی آدمی تھے. مجھے ان کا بیٹا کہنے لگا کہ جب نئی نئی پجارو آئی تھی نا، نئی 1984-85 میں غالباً نئی آئی تھی. پھر اب جس کی موجودہ شکل پراڈو، لینڈ کروزر وغیرہ وغیرہ، بی ایم ڈبلیو سی، وہ کیا ہے، لگزس وغیرہ. اچھا، یہ وہ کہنے لگے کہ ان پہ فائرنگ ہوئی، دشمنوں نے فائرنگ کی، فائرنگ ہوتی رہی اور یہ گاڑی بھگاتے رہے. اور گاڑی کوئی بلٹ پروف نہیں تھی، گولیاں گاڑی میں آتی رہی، کئی میل تک فائرنگ ہوتی رہی. کہا جب کورٹ میں گئے، جج نے گاڑی ہماری باقاعدہ دیکھی تو آپ کہتے ہیں ہم بچ گئے ہیں، یا آپ نے باپے کو پکڑ جھلی کوئی جھلی تھی، جھل پیر پکڑ کے اسم زاریاں تے حالے سے زور والے کہنی سے زاریاں والے سے. کہا کہ وہ کہنے لگا تم نے گاڑی خالی کی ہے، اس پہ فائرنگ کی ہے ان پہ کیس بنانے کے لیے. کیسے ممکن ہے بندے بچ جائیں؟ انہوں نے کہا ملک صاحب آپ اس میں تھے؟ ہاں میں تھا، یہ بندے تھے. اب جب ملک صاحب نے بات کہی وہ سچ کہی. اب سنیں، ان کا بیٹا کہنے لگا والد صاحب نے فرمایا جو میرا روز لنگر چلتا تھا نا، وہ روٹیاں تھال بھن بھن کے گولیوں کے سامنے آتی تھی اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا. میں نے ان کا لنگر دیکھا ہے، بہت لنگر ہے. وہ روٹیاں تھال بن بن کے نا گولیوں کے سامنے ایسے آ رہی ہوتی تھی، گولیاں بچھاڑ تھی گولیوں کی. اور انہیں فیصلہ کیا تھا، وہ دشمندار بندہ تھا، تبن شریف آدمی تھا، اچھا انسان تھا، سخی آدمی تھا، دشمندار. کہا کہ وہ ایسے روٹیاں تھال بن بن کے ان گولیوں کے سامنے آتی تھی اور میں بچ گیا. اللہ اکبر. کون سا لفظ تھا؟ کون سا؟ خا. اب ہمارا لفظ ہے زال. اخیبہ اس کی تاثیر ہے. اخیبہ، اور یہ ہمارے نچلے جبڑے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نچلے جبڑے کے ساتھ. اور فرمایا قیامت کے دن مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. خذو، بھائی اس بندے کو چھو رہا ہے، خذو فغلو ثم الجحیم. اور عورتوں کو بالوں سے پکڑا جائے گا، نچلے جبڑے سے. اور جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ زال پڑھا ہے نا، زال زال پڑھا ہے. تو یہ نچلے جبڑے کا اس کے ساتھ تعلق، پھر دانتوں کے ساتھ اس کا تعلق، نچلے جبڑے کی داڑھوں کے ساتھ اس کا تعلق، نچلے جبڑے کے ساتھ زبان جڑی ہوئی ہے. زبان کے نیچے ایک تاثیر ہے. کیوں دل کے دورے کی گولی زبان کے نیچے رکھتے ہیں، زبان کے اوپر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گولیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہے کہ زبان کے نیچے رکھیں، زبان کے اوپر نہ رکھیں. یہ نچلے جبڑے کے ساتھ اس کی تاثیر جڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب اگلا لفظ ہمارا ذات ہے. زال تو دیسی بولنے دے، دیسی بیٹھے ہیں قاری صاحب، ہم فقیر سارے بیٹھے ہیں. ان سب نے جو ہے مخارج نہیں پڑھے. میں بھی اپنے مخارج میں کمزور ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے سوائے اردو کے کوئی زبان نہیں آتی. اردو میں بھی تاثیر زیر زبر میں بالکل فارغ ہوں.
ज़ौद है क्या, ये मुकद्दम है, इसकी तासीर मुकद्दम है, और इसका असर हमारी इस आवाज पे है। ये जो मैं बोल रहा हूं, जबान भी होती है, गला बंद हो जाता है, बंदा आवाज नहीं निकाल सकता। मेरे पास कितने लोग कहते हैं आवाज नहीं निकाल सकते। एक बाबा जी थे, उन्होंने पानी का पाइप साथ रखा हुआ था। ये पानी का पाइप नहीं होता ट्यूब जिससे छिड़काव करते हैं। मैं गया ना तो मुझे एक बंदा कहने लगा, आओ बाबे के पास चलते हैं, बाबे की तारीफ करेंगे, बाबा खिलाएगा पिलाएगा। बंदा था खाने पीने वाला, मुफ्त में खाता था। तो मैं गया, साथ गया। मैंने कहा मैं खाऊंगा नहीं लेकिन मंजर जरूर देखूंगा। बाबा जी के पास पाइप पड़ा हुआ था, उसने बाबा जी ने कान के साथ पाइप लगाया, उसने मुंह के साथ लगाया और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम जोर से। बाबा जी ने कहा वालेकुम सलाम, 3-4 दफा बाबा जी ने वालेहाना कहा। फिर आगे उसने पाइप लगाया कान के साथ, बाबा जी की तारीफें की, 3-4 बाबा जी की तारीफें की। और बाबा जी कहने लगा कुछ खाना पीना है, कहने लगे सखियों के दर पे आए हैं। बाबा जी ने फिर चीजें मंगवाई। अब मैं अपना तकवा अख्तियार नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई ये लंगर मैं नहीं खाऊंगा। आप कहेंगे अपना तकवा बयान कर रहा है, आवाज के साथ है, आवाज। एक साहब मेरे पास आए, बोल नहीं सकते थे, फिर मैंने करीब किया, करीब बड़ी मुश्किल से उनकी आवाज सुने। ये फालिज की दुनिया में इंसान बोल नहीं सकता, इस हर्फ का ताल्लुक आवाज के साथ है। अब ज़ौ, जिसे ज़ोए कहते हैं, क्या लफ्ज है ज़ौ, इसका हर्फ मुअख्खर है, तासीर मुअख्खर है। इसका ताल्लुक हमारी पिंडलियों के साथ है, टखनों से लेकर, घुटनों से लेकर टखनों तक, एड़ी तक, ये जो हमारा हिस्सा है पिंडलियों के साथ इसका ताल्लुक। और आखिरी हमारा हर्फ है गैन रिशा, गैन, इसकी तासीर रिशा है और इसका ताल्लुक हमारे जिस्म के बालों के साथ है। जिस्म का बाल भी कितना हुस्न होते हैं। ये बाज मरीज होते हैं जो कैंसर की कीमो वगैरह, उनके सारे बाल उड़ जाते हैं। कई मरीज ऐसे हैं जो कैंसर नहीं, खुद ऐसे ही बाल उड़ जाते हैं, बाल भी हुस्न होते हैं। ये दिन में 5 दफा इतनी देर लगा के आपने ये अमल करना है, 5 दफा। आए फिर अगले अमल की तरफ लौटते हैं। मैं वो हुरूफ बयान करता हूं जिनका ताल्लुक सर से है, फिर वो हुरूफ बयान करूंगा ये सर से लेकर सीने तक, वो हुरूफ बयान करूंगा जो सीने से लेकर नाफ तक, वो हुरूफ बयान करूंगा जो नाफ से लेकर फिर निचला धड़, वो हुरूफ बयान करूंगा। और हुरूफ की दुनिया अगर जानना चाहते हैं तो इब्न खुल्दून को पढ़ें। इमाम गजाली ने हुरूफ की दुनिया में, इमाम बूनी ने हुरूफ की दुनिया, शेख अहमद अल आलवी ने हुरूफ की दुनिया, अमीर खुसरो ने हरूफ की दुनिया को बयान किया, सुल्तान बाहू ने हरूफ की दुनिया को बयान किया, शेख नजीबुद्दीन इब्न सक्कानी ने हरूफ की दुनिया, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हरूफ की दुनिया, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी अर्दुल का मुर्शिद हरूफ की दुनिया, शेख मोहम्मद शाफी हरूफ की दुनिया, शेख अली मोहम्मद अल तनावी हरूफ की दुनिया, इमाम जाफर सादिक हरूफ की दुनिया, मंसूर हल्लाज हरूफ की दुनिया। और कायनात के मुहद्दिसीन बड़े बड़े हैं जिन्होंने हरूफ की दुनिया के ऊपर किताबें लिखी हैं कि हरफों की तासीर, हरफों की ताकत है ही क्या। कहाँ है मेरे पास वो इल्म, मैं बयान कहाँ कर सकूं। अरबी बोलनी मुझे ना आए, इंग्लिश के 2 लफ्ज मुझे भूल गए, उर्दू की जेर जबर मैं ना जानूं, कहाँ हरूफ की दुनिया बयान करूं। आए फिर आगे चलते हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और अपने सर से लेकर सीने तक का तसव्वुर करेंगे। और सर से सीने तक की जितनी बीमारियां, तकलीफें हैं, रूहानी मसाइल, जिस्मानी मसाइल, जादुई मसाइल, काली दुनिया के मसाइल, काले जादू के मसाइल, काले रोगों के मसाइल, काले लोगों के मसाइल, ये इंशाल्लाह हल होते जाएंगे। मेरे साथ पढ़ते जाएं। अलिफ, दाल, या, लाम, मीम, नून, आइन। अब अगले हरूफ जो सीने से नाफ तक के दरमियान का सारा निजाम, रूहानी भी जिस्मानी भी,
सारी तकलीफें, सारे मसाइल, सारी उलझने सीने से नाफ तक के जिस्म के अंदर उसके हरूफ हैं जिनका हरूफ का ताल्लुक इसके साथ है और उनकी तासीर जारी है। जीम, जा, काफ, सीन, फा, ता, हा। अब अगले हरूफ हैं जो नाफ से लेकर सुरीनों तक इनका ताल्लुक है और नाफ से सुरीनों तक ताल्लुक है। वो पूरी इस निज़ाम को हिफाजत, किफ़ायत और इसकी बीमारियां, तकलीफ़ें और इसके रोग और इसके ऊपर अगर जादू, जिन्नात, असरात और इसके ऊपर बंदिशें, काली चीज़ें हैं, उन हरूफ को उठा के एक तरफ हरूफ की बरकत से ख़त्म चीज़ होगी। हा, जा, शीन, सौद, जा, ज़ाद, तो अब आखिरी हरूफ है जो निचले धड़ के लिए हैं और निचले धड़ की हिफाजत रूहानी और जिस्मानी, वो है बा, दाल, खा, ज़ा, गैन, ज़ाद, काफ। अब एक और हरूफ हैं जो हमारे दाएं तरफ के हिसार देंगे, दाएं तरफ को संभालेंगे। अगले हरूफ पढ़वाऊंगा जो बाएं तरफ को संभालेंगे। आने वाली बलाएं, आने वाली आफतें, आने वाली मुसीबतें दाएं तरफ से आएं, बाएं तरफ से आएं, ऊपर से आएं, नीचे से आएं, आगे से आएं, पीछे से आएं। इन हरूफ की ताकत, मैंने अपनी गुफ्तगू में एक बात अर्ज किया, हमने हुरूफ का हिसार खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ का कोट खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ की डिफेंस वाल खत्म कर बैठे हैं, हुरूफ की हिफाजत वाली दीवार तोड़ बैठे हैं, जिसकी वजह से रोगों, तकलीफों और मुसीबतों और परेशानियों में हैं। और ये जो अभी आपने बयान किए हैं, हरूफ सर वाले, सीने वाले, नाफ वाले, निचले धड़ वाले, ये रोजाना 40 दफा इसी तरह पढ़ना है आपने, रोजाना 40 दफा, वरना फिर एक हरूफ का राज दूंगा, वो सारे के सारे इन चीजों पे किफायत के लिए काफी। एक छोटी सी चुटकी, आप बोलो कौन सी चीज चाहिए? फिर सोते क्यों, वरना लाइटें जला दूंगा। लाइटें जला दी उसने सारी, फराटे लेने शुरू करे, 2 दिन का जागा हुआ, कहीं मार दूंगा बस। मेरे ना जाके था लगी, मैं क्यों, तेरा भला हुआ, मेरा काम तूने कर दिया। मैं लोगों को जगाता रहता हूं, मैं कच्चा ड्राइवर हूं। वो कच्चा ड्राइवर कहता है मेरे आगे साथ बैठने वाला बंदा सोए ना, पक्का ड्राइवर कहता है सारी कोच सोती रहे, सफर करता है। मैं तो कच्चा ड्राइवर हूं, सोए तो मेरे ऊपर से मजामीन आना खत्म हो जाते हैं जिनकी बरकत से मैं बोल रहा होता हूं। और मेरे पास तो कहां इल्म है, कहां इल्म है? वो तो उसकी अता है, उसका करम है, वो चाहे बंद कर दे दरवाजे, चाहे खोल दे। आए हम आज दाएं तरफ को महफूज करते हैं और अपने दाएं तरफ को ताकतवर बनाते हैं और अपने दाएं तरफ को सेफ करते हैं और अपने दाएं तरफ में आने वाली आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें, हादसे, हमले, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नजर बद, नाकामियां, बाएं तरफ, दाएं तरफ को, दाएं राइट, दाएं तरफ को महफूज करते हैं। उसके हरूफ मेरे साथ आप पढ़ेंगे, वो अलिफ, हा, तो, मीम, फा, शीन, ज़ा। आए हम बाएं तरफ को महफूज करते हैं, हमारे बाएं तरफ की भी सारी हिफाजत, किफायत, किफालत, आफियत, बरकत इन हुरूफ की दुनिया से चले। और मैंने हुरूफ की दुनिया में बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिखे हैं, आपके सामने बयान किए हैं, और वो सिर्फ चंद नाम हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम बयान किए हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां हुरूफ की तासीर, हरूफ के कमाल, हरूफ की ताकत पे जिंदगियां गुजार दी। उन्होंने अपनी सारी हयातियां गुजार दी और दुनिया के कायनात के बड़े बड़े वजनी नाम हैं, सरों पे उठा के चूमने वाले नाम हैं। मैंने उन नामों में चंद नाम बयान किए हैं। आए हम इन हरूफ की बरकतों को बाएं तरफ से महफूज करते हैं, अपने बाएं तरफ को महफूज करते हैं, अपने बाएं तरफ को। तो मेरे साथ पढ़ें, बा, वाव, या, नून, स्वाद, तो, ज़ात। अब हमारा आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, ये जो आगे होगा ये आगे और ऊपर होगा, आगे और ऊपर होगा, और जो नीचे होगा ये नीचे और पीछे होगा। तो आए हम अपने आगे और ऊपर को महफूज करते हैं कि आफात, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें अगर आ रही हैं तो उनकी हिफाजत रहे, काली दुनिया से, काले जादू से, काले लोगों से, काले रोगों से, उनसे हिफाजत रहे। तो पढ़ें, जीम, जा, काफ, सीन, काफ,
सौ, ज़ौ। आए हम पीछे और नीचे, पीछे और नीचे को महफूज करते हैं इन मुबारक हरूफ की बरकत से। दाल, हा, लाम, आइन, रा, खा, गाइन। रोजाना 40 दफा पढ़ना। कितनी दफा? रोजाना 40 दफा पढ़ना। आप सोच नहीं सकते इन हरूफ में क्या कायनात है। सारा कुरान हरफों से मिलके बना है, सारा फरमान मेरे कमली वाला का हरफों का मिलके बना है, करबला की सारी दुआएं हरफों मिलके बनी है, मेरे आका के सारे फरमान हरफों से मिलके बना है, हुसैन हरफों से मिला है, हसन हरफों से बना है, उस्मान ज़िन्नुरैन 18 ज़िलहज को उनकी शहादत है, जिनके आज भी मैं बिल्डिंग ऐसे गुजर रहा था, बस लिखा हुआ था उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह, उनके नाम की बिल्डिंग है, उनके नाम की बिल्डिंग मैं खुद देख के आया हूँ, मिन पे है, बल्दिया में उनकी जायदाद है, मदीना की बल्दिया में, उनके वफ़ की इमलाक है, उनका पूरा बैंक में क्या है, अकाउंट है, पूरा निजाम है। ज़िन्नुरैन है, उनके साथ नूर, ज़िन्नूर फरिश्तों में उनका नाम है, ज़िन्नुरैन जन्नतियों में उनका नाम है। फरिश्ते उनको ज़िन्नूर कहते हैं और जन्नती उनको ज़िन्नुरैन कहते हैं, जिनके साथ नूर है। और इसको लफ्ज़ को पढ़ने से जो नूर की बारिश होती है, उस नूर में जब बंदा डूबता है, फिर कहाँ गई बीमारियां, कहाँ दुख, और कहाँ गई तकलीफें, कहाँ गई बेरोजगारियां, और कहाँ गए मसाइल और मुश्किलात। जब इस लफ्ज में बंदा डूबता है और इस लफ्ज को 110 दफा पढ़ता है मशरिक की तरफ मुंह करके नंगे पांव, कमाल है, नूर ही नूर है। हाँ, नूर ही नूर है। कभी 1000 ऊंट, कभी 400 ऊंट, कभी मेरे आका इतने खुश हुए कि खड़े हो गए, ए उस्मान, आज के बाद अगर तो कोई नेकी भी ना कर तो अल्लाह तुझसे राजी है और मोहम्मद तुझसे राजी है। 18 ज़िलहज उनकी शहादत, 18 ज़िलहज। आए एक अमल करते हैं हम बैठ के, और हुरूफ की दुनिया का एक हरफों का मजमुआ दुआए अली की शक्ल में सुनते हैं। हरफों का मजमुआ, जरा इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा और एक बात पे गौर कीजिएगा। हाँ, कायनात के सरदार आले रसूल, कायनात के सरदार ने हमें किस हस्ती से मांगना सिखाया, किस हस्ती से लेना सिखाया, किस हस्ती से के सामने गिड़गिड़ाना सिखाया। हमें यतीम छोड़कर नहीं गए, कायनात के सरदार हमें मिस्कीन छोड़कर नहीं गए, कायनात के सरदार हमें मंगता छोड़कर नहीं गए। हाँ, नहीं, हमें लावारिस छोड़कर नहीं गए, हमें एक हस्ती से मांगना सिखाया। अपने गुलाम, अपने खादिम कुमैल बिन जियाद को हर्फ सिखाए, अपने हसनैन करीमैन हसन और हुसैन को दुआएं सिखाई और ये लफ्ज सिखाए। इस दुआ के अंदर हुरूफ पे गौर कीजिएगा, इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा, और इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा कि कितनी जारी है अल्लाह के सामने मांगने में, लेने में, दुआओं में, कितनी इल्तजाएं हैं और कितनी मिन्नतें हैं। और ये सिखाया है ख्याल करना, जब कभी मुश्किल में आ जाना तो अली के मौला से मिलना और अली के मौला से कहना कि मौला तुझे इन हरफों से याद करते हैं मुश्किलें आसान हो जाएंगी। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। दरूद शिफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अपनी किताब देखते हुए हरफों पे उंगली फेरेंगे, उंगली फेरते हुए तवज्जो से तर्जमे पे गौर करेंगे और लफ्जों के हरूफ की ताकत पे गौर करेंगे और जारियों पे गौर करेंगे और मिन्नतों पे गौर करेंगे कि अल्लाह की मिन्नतें कैसे की जा रही। और ये असल में वो तो पहुंची हुई हस्तियां थी ना, कहते हैं ये पहुंची हुई सरकार है, हज़रत अली से बढ़ के कोई पहुंचा हुआ होगा? वो पहुंची हुई हस्तियां थी। हमें सिखाया जा रहा है कि देखो अगर तो दुनिया में कभी तकलीफ आ जाए तो फिर ऐसे मांगना। आले रसूल ने हमें यतीम, हमें मिस्कीन, हमें दर दर का मंगता नहीं छोड़ा, हमें एक दर का मंगता छोड़ा है। सुने।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आँखों पे उंगली, दिल पे उंगली, वही उंगली जो इन लफ्ज़ों पे फिरी, इन हरफों पे फिरी, वही उंगली। क्या हर्फ जमा है, क्या हरफों की ताकत है, क्या हरफों का बोल है, क्या हरफों की तासीर है। और बयान करने वाली ज़ुबान अली की है, और सुबहान अल्लाह, और अल्लाह के सामने बातें हो रही हैं, और अल्लाह के सामने राज और नियाज हो रहा है, और क़यामत तक आने वाली आखिरी इंसानियत को सिखाया जा रहा है। मांगना सीखो, उस हस्ती के सामने गिड़गिड़ाना सीखो, गिड़गिड़ाना सीखो। दर दर की गदाई छोड़ के एक दर की गदाई सीख जाओ। ये मांगना सिखाया। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उन हस्तियों के नूर में और नूर डाल दे, बरकतों में और बरकतें डाल दे। सुबहान अल्लाह, क्या उन हस्तियों की कदरें, क्या उन हस्तियों का वक़ार, क्या उन हस्तियों की इज़्ज़तें, क्या आले रसूल का मकाम। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुरूफ का एक मजमुआ देता हूँ, राज देता हूँ। 29 हुरूफ का एक नक्श दिया हुआ है मैंने आपको। 29 दफ़ा हर्फ लिखें और 29 सतरें लिखें, बस ये मजमुआ है। समझ नहीं आई? एक नक्श मैंने साल से आपको दिया हुआ है। मैंने कॉलेज में 88 में एक बाबा जी साथ थे, मुल्तानी दरवाजे के अंदर बाबा जी होते थे। मुझे किसी ने बताया पीर भी हैं, हकीम भी हैं, गालियाँ बहुत देते हैं। मैं कहा चलो, मैं गया तो बाबे की बेंच ठीक कर दी, घड़ा पड़ा था उसको भर दिया, यूँ कर दिया। मुझे कहा ओए छोकरा, कहाँ से आया तू? मैं कहा जी मैं खिदमत करने आया हूँ थोड़ी सी। तुझे किसने बताया? तुझे पता नहीं मैं ठग हूँ? और फिर अपने आप को गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं चुप। अच्छा, मैं रोज़ जाता ऐसे खिदमत कर देता। पहले दिन सख्ती थी, उसके बाद फिर मोहब्बत बाबा जी की मोहब्बत थी। अच्छा, एक दफा एक माई आई, कहने लगी पीरा पोतर दे। माई को ना बहुत बड़ी गाली दी, 1 मन 23 किलो और 55 ग्राम की, बहुत लंबी गाली दी। गालियां देते थे, चुप, मैं खामोश। मुझे कहने लगे मोहब्बत से, मेरे साथ शफकत, उनकी मेहरबानी, कागज ढूंढ के ले आ कोई। माई को ना अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ लिख के दे दे। मैंने लिख के दे दिए, हाथ से पकड़ के ना, कहने लगे ये ले जा, गले में डाल। देखो अल्लाह पोतर देसी, एक बकरी घिनसा, एक सूट घिनसा, मिठाई घिनसा, ये घिनसा, ये घिनसा, आके देसा देसा देसा, दूंगी। माई कहने लगे दूंगी। और वो जिस बीमारी के लिए हुरूफ लिख के दे देते थे, 29 हुरूफ। और एकदम मुझसे कहने लगे इधर आ, बैठ जा मेरे पास, 29 हुरूफ की तुझे इजाज़त देता हूँ। मेरा कान पकड़ा हुआ था, इजाज़त देता हूँ, इसकी तासीर देता हूँ। मुझे एक मजजूब ने दी थी, मजजूब दरवेश ने मुझे एक दी थी, इसकी इजाज़त देता हूँ, तासीर देता हूँ। और ये इजाज़त और तासीर मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे तो कान पकड़वा के मिली थी, घड़े भर के, झाड़ू दे के, और गालियों वाला माहौल होता था बाबे का। और बाबे को पेशाब आता था, उधर बैठ जाता था, करे माया खुद पर्दा कर गिनाए। एक और बाबे भी कई मैंने देखे कि माया बीबियां खुद पर्दा कराए चा, खुद तू कर, खुदा का नाम ले। माइयों को कहते हैं माया पर्दा कर ले। अजीब लोग हैं, अल्लाह ने दुनिया में बनाए हर रंग। तो ये हुरूफ की ताकत है। मैंने ये नक्श साल से बताया है। घुलने वाली स्याही से, या ज़ाफ़रान से, या जर्दे के रंग से, या हमारी रूहानी रोशनाई जो अबकरी की, कोई भी, उसमें हुरूफ लिखें, अलिफ से लेकर बा से लेकर या तक जितने भी अरबी के हुरूफ 29 हैं, ये 28-29 हुरूफ लिखें एक लाइन में, बारीक बारीक लिखें। फिर दूसरी लाइन, इस तरह 29 लाइनें, हर लाइन में हर्फ पूरे हो जाएं, फिर दूसरी लाइन में हर्फ पूरे हो जाएं 29, फिर तीसरी लाइन, इस तरह हर्फ पूरे हो जाएं
जाएं, ये लिखें, बड़ा ताकतवर नक्श है, घोल के पीने में, बांधने में, तकिए में रखने में, वज़न के नीचे रखने में, लटकाने में, मसाइल के लिए, मुश्किलात के लिए, नाकामियों के लिए, ज़िंदगी का कोई भी मसला है जो हम समझते हैं कि वो नामुमकिन हो चुका है, हम समझते हैं, उसके लिए हैरत अंगेज़ तासीर है इसकी। या ये ले लें या फिर 40-40 दफ़ा दिन में वो पढ़ें, फिर वो पढ़ें, बोलें कौन सी चीज़ लेनी है। बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ है और लाजवाब चीज़ है। मैं हरफों की ताकत को इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात भी बयान करूँगा। मेरा जी चाहता है कि हरफों की ताकत को और भी बयान करूँ। नक्श ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये नक्श मैंने जो आपको अभी दिया है और इसकी इजाज़त भी दी है और ये साल से मैं आप हजरात को दे रहा हूँ और इससे बेशुमार तासीर, कमाल, फ़ायदे, नेमतें, अताएँ। कभी ना किसी पीर से कहना ये नक्श आपने लिख के दे दिया, ये मुझे दे दो, कभी लेके दिखाओ। कोई पीर साहब हो, नक्श देते हो और उनका नक्श कोई चलता हो, तावीज़ चलता हो और लोगों को फैज़ मिलता हो, उनसे कहें हजरत आप ये नक्श मुझे बता दें क्या लिखना है, मैं खुद आइंदा लिख लिया करूँगा और लोगों को दे दिया करूँगा। ज़रा पूछ के देखना। वो एक हुक्मरान को ना, पाकिस्तान के एक हुक्मरान को, उनके साथ एक साहब होते थे सिक्योरिटी के, उन्होंने मुझे बताया, कह रहे हम मदीना में गए तो एक साहब ने, पाकिस्तानी थे, उन्होंने उसको गाली दी तो उनका हौसला बड़ा था, पीछे मुड़ के कहने लगा अपने इलाके के थानेदार को ये गाली देख के देखना क्या होता है। आगे निकल गए। तो आप कभी किसी से नक्श ज़रा ले के मुझे दिखा दें। हैं दुनिया में ऐसे लोग सखी मौजूद हैं लेकिन बहुत कम। अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाना, ये तस्बीह खाना कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, मैं भी तस्बीह खाने की वजह से हूँ ना। ये मिंबर तस्बीह खाना, ये तस्बीह खाने की बरकतें हैं कि ये नक्श आप तक पहुँच रहे हैं, ये सादतें आप तक पहुँच रही हैं, ये बरकतें आप तक पहुँच रही हैं, ये इनायात और अताएँ आप तक पहुँच रही हैं। ये तस्बीह खाने की बरकतें हैं। और ये जो दुआए अली है, मेरी कोताही है कि मैंने इसको काउंटर पे नहीं रखी, बिल्कुल फ्री। आइंदा जुमेरात से फ्री होगी, अगर नहीं छपी तो मेरी टीम इसको फ़ौरन छापे और हर जुमेरात इसको फ्री बांटा जाएगा। हर बंदा, ख़वातीन की तरफ भी मर्दों की तरफ, मेरी कोताही है। आज कितनी जुमेरात है कि मैंने इसको फ्री नहीं दिया, मेरी, हालांकि मैं देता हूँ और अल्लाह ख़जाने गैब से देता है। अल्लाह करे अल्लाह देने वाला बनाए, अल्लाह चंदे करने वाला और ना बनाए, इस दर को हमेशा देने वाला बनाए। तो ये हमेशा आइंदा साल भी याद रहे मेरे अहबाब मुखलिसीन को जो खिदमत वाले हैं। आइंदा साल भी पहली जुमेरात से 11 जुमेरातों तक ये फ्री तकसीम होगी, ख़वातीन की तरफ भी मर्दों की तरफ भी। कितने बेशुमार नए लोग आते हैं, उनके पास दुआ अली होती ही नहीं, आज भी बेचारे दूसरों की देख के। हालांकि हर जुमेरात देखता हूँ, पता नहीं बस ज़हन से निकल गया, आप ही कोई ऐसे मजमून निकाल देते हैं जिसमें बसों के वाक़े शुरू होते हैं कि लाइटें जला दो, और कभी अरफात में यार रोल कतेने वाला यार रोलेंदा है कहते हज करन आई। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी आदमी, MNA, बहुत बड़ा नाम है। हम ना बस की ओट में चादर बिछा के अरफात में बैठे थे, पता नहीं ड्राइवर को क्या हुआ, उसने कहा मैं बस का AC चला के सोऊं। उसने जो बस का AC चला के ना सल्फ मारा, पता नहीं जो धुआं निकला और उसमें से मिट्टी उड़ी ना, उसका मुंह भर गया, मेरा मुंह भर गया। ऐसे उठा के जाए नमाज, पता क्या कहने लगा फिर बख्शिश ऐसे तो नहीं होगी, कुछ होगा तो सही फिर बख्शिश ऐसे तो नहीं होगी। बहुत मालदार आदमी, बहुत सियासी, बड़ा, हर दफा MNA, हर दफा ये, बख्शिश ऐसे तो फिर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इसमें आज़म का जो रूहानी दम है ना, और सालाना नज़र बद का ख़ास दम है, ये 10 मुहर्रम को होगा बाद नमाज फजर। और 9-10 मुहर्रम के जो रूहानी पैकेज हैं, 9-10 मुहर्रम की जो हैरत अंगेज़ दुनिया है, 9-10 मुहर्रम में जो झोलियाँ भर के मिलेगा ना, और बेबहा लंगर भी और पुरतकल्लुफ़ लंगर भी, बरकतें भी, ये फिर 9-10 मुहर्रम का नियत करें तस्बीह खाने में गुजारने की। 9-10 मुहर्रम में हैरत अंगेज़ कायनात मिलेगी, 9-10 मुहर्रम में इंशाअल्लाह। और आमिल कामिल बनने के लिए
5 से 8 सफ़र के दरमियान में हमारी रूहानी क्लास भी और हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी होगा जो हर दफ़ा होता है। और मेरे हाथ का हिज़्बुल बहर का इंतहाई तीर बहदफ नक्श अबकरी अगस्त में छपेगा। हिज़्बुल बहर का जो नक्श है अबकरी में छपेगा। माह सफ़र की नौचंदी जुमेरात को ये रिसाला तस्बीह खाने में हमरा ज़रूर लाइएगा। ये मेरे हाथ का लिखा हुआ नक्श हिज़्बुल बहर का इंशाअल्लाह अगस्त में छपेगा। अभी जो हमारा रिसाला आया है जून का, इसमें 12 वो नकूश सारे छपे हैं जो हर 3 महीने के बाद छपते थे। इन नकूश को फैलाएं, इन नक्श को पुर करें, अपने पास अपनी नस्लों का सरमाया बनाएं। ख्याल करना इस रिसाले को ज़ाय न कर बैठना। और ये हैरत अंगेज़ रिसाला है। और आपकी कोई मुराद पूरी नहीं होती, 21 जुमेरातों की मन्नत माने और हर जुमेरात आएँ तो फिर तो कमाल ही और है। और दम वाला डब्बा पहले ले लिया करें, उसमें नक्श हैं, उसमें चीज़ें हैं, वो पहले से कर लिया करें। दम वाले डब्बे को पहले से ले लिया करें। पार्किंग में तामुन करें। और ख़ास तौर पे जब मजमा निकलता है उस वक्त हमारे वार्डन हजरात बहुत तवज्जो करते हैं, उनसे बहुत तामुन करें। और आपका नसीब सोया है ना, तो तस्बीह खाने में 3 दिन लगाएं। जुमेरात असर से एतवार ज़ोहर तक यहाँ रूहानी पैकेज और हैरत अंगेज़ दुनिया तस्बीह खाने में 3 दिन लगाएं। और आप अगर बैठे बैठे मालदार बनना चाहते हैं मिनटों सेकंडों में, तो दूसरों के मोबाइल पे अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराएं। लोगों को खैर पहुंचाएंगे, अल्लाह पहले आपको पहुंचाएगा। बड़ा तजर्बा है। दिन रात ये मिशन बना लें, दिन रात ये मिशन बना लें कि लोगों के मोबाइल को सब्सक्राइब कराएं। दिन रात मिशन बना लें। और इंशाअल्लाह मानसेरा की जो महफिल है 5 जुलाई को है। 5 जुलाई मैं तो बाद नमाज जुमा कहता रहा, हमारे अहबाब ने उसको 4 बजे लिख दिया। मैं हर दफ़ा बाद जुमा गिलगित 4 बजे है, मानसेरा तो 1 बजे के बाद है ना। गिलगित में 4 बजे। अच्छा, गिलगित में 4 बजे है इंशाअल्लाह ताला, हफ्ते के दिन, एतवार के दिन, 7 जुलाई को एतवार के दिन। और कराची साइमा टावर में 28 जुलाई 1 बजे ताकतवर रूहानी तहाइफ के साथ, ताकतवर रूहानी तहाइफ के साथ। और पूरी दुनिया के लोग मेरे वालिदैन के मज़ारात पर आमाल का हदिया लेके जाते हैं। इजाज़त है, ज़रूर जाएं। आमाल की बरकत से झोलियाँ भर के आते हैं, लेकिन वहाँ गैर शरई कैफियत से बचें। अच्छा जी, ठीक है फिर। हाँ, हरूफ तहज्जी की जो मुकम्मल पोस्ट है वो और उसका पूरा तरीका सोशल मीडिया पर डाल दी है आपके लिए, आसानी के लिए। आप फ़ौरन अपकरी के सोशल मीडिया पे चेक करेंगे तो हरूफ सवामत की मुस्तकिल जो है पोस्ट डाल दी है इंशाअल्लाह ताला, वो डाल दी है। बाकी ऐलान बाद में करेंगे। आए बैठ के, थैली आपके सामने होगी। इसमें 4 काली चीज़ें हैं। कलवंजी है, माश हैं, काली माश हैं, हरमल है और काली मरच है। और इसको बहुत ताकतवर अमल मैंने देखा है। जब अमल के बाद इसको चुटकी तवे पे जलाते हैं ना, सारी काली दुनिया, काली चीज़ें, काले रोग जल जाते हैं। इस पे हमने या लतीफ़ो या वदूदो को 7 दफ़ा दम करना है। कितनी दफ़ा? मुख्तसर करें पर तासीर से करें, तवज्जो से करें। 7 दफ़ा हमने दम करना है या लतीफ़ो या वदूदो का। उसके बाद इसमें ज़ात अल्लाह पढ़ना है और फिर दुआ और मुराकबा। इसमें ज़ात अल्लाह और दुआ और मुराकबा। अच्छा, आज मैं मुसाफा करूँगा, लेकिन मेरी एक मिन्नत है। हाथ खींचते हैं, चूमते हैं, बाज़ औक़ात चूमते चूमते दांतों से काट देते हैं, नाखून मारते हैं, मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। मेरी मिन्नत है, ना मिलाऊं तो कहते हैं गरीबों से नहीं मिलता, अमीरों से मिलता है। अल्लाह ही अल्लाह, बस क्या करूं। तो आज मैं मुसाफा करूंगा, मिन्नत है, ऐसा ना कीजिएगा। मिन्नत आपसे दरख्वास्त है, आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, शफकत है। तो फिर अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद हमने पढ़ लिया है, दुरूद पाक। अब इसको थैली को सामने रख के, थैली को, और हमने या लतीफ़ो या वदूदो को पढ़ना है। और थोड़ा पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। या लतीफ़ो या वदूद, फिर फूंक मारनी है सांस रोक के, फिर पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है। इस तरह 7 फूंकें मारनी है। तवज्जो से पढ़ें।
یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، توجہ سے ڈوب کے، جذبے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف اللہ 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 اللہ
آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، 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 قبول فرما، قبول فرما۔ منہ پہ نہ مار دے، منہ پہ نہ مار دے، ہمارے حج منہ پہ نہ مار دے، ہماری نمازیں، ہمارے قدم، ہماری تسمیاں، ہمارے یا لطیف و یا ودود کہیں منہ پہ نہ مار دے۔ مولا قبول کر لے، مولا قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت مولانا انک انت التواب الرحیم۔ قبول فرما، قبول فرما، حاضری قبول فرما، آنا بیٹھنا قبول فرما، ہاتھ اٹھانا قبول فرما، ہماری زندگی قبول فرما، ہمارے سانس قبول فرما، ان محفلوں کے لیے قبول فرما، ان راہوں کے لیے قبول فرما، اور ان محفلوں کا ادب عطا فرما، حاضری کا ادب عطا فرما۔ سوچوں کی بے ادبی سے بچا، جذبوں کی بے ادبی سے بچا، حرفوں کی بے ادبی سے بچا، لفظوں کی بے عربی سے بچا، لفظوں کی بے ادبی سے بچا، اے اللہ بے ادبی سے بچا۔ کرم فرما، بے گھروں کے گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، جھولیاں بھر دے، جھولیاں بھر دے، جھولیاں بھر دے، آباد کر دے، شاد کر دے، نامرادی سے بچا، ذلت سے بچا، علت سے بچا، قلت سے بچا۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ رحم فرما، رحم فرما۔ مولا جہنمی لفظ رحم کہیں گے، رحم، رحم، رحم۔ اپنی رحمت سے بے گھروں کو گھر دے دے، اپنی رحمت سے بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، رزق کے دروازے کھول دے، صحت کے دروازے کھول دے، جادو جنات ختم کر دے، پرانے روگ ختم کر دے، عافیت کے رحم کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ اے مولا جو جتنی آسیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، امیدیں لے کے آئے ہیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور فرما دے، ذلت کے دروازے بند کر دے، اعلانے والوں کو خوشیاں دے دے، خوشحالیاں دے دے، اور جو دنیا میں جہاں بیٹھے آمین کہہ رہے ان کی مرادیں پوری کر دے، ان کی آسیں پوری کر دے، ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی ناکامیاں دور کر دے۔ مولا، مولا بامراد کر دے، بے مرادی سے بچا، ذلت سے بچا، شقاوت سے بچا۔ اگر ہماری پیشانی پہ ہماری خطا کی وجہ سے لعنت لکھی ہے، شقاوت لکھی
ہے, بدبختی لکھی ہے, بدنصیبی لکھی ہے. مولا اللہ بھی تیرا ہے, قلم بھی تیرا ہے, اس کو مٹا دے مولا, اس کو مٹا دے اللہ. اس کی جگہ رحمت لکھ دے, نصیب لکھ دے, بخت لکھ دے, مقدر لکھ دے, راحت لکھ دے, عفو لکھ دے, عافیت لکھ دے, جنتی لکھ دے, جہنمی مٹا دے. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو آئندہ مانگا عطا فرما, جو پھر مانگا عطا فرما, جو ابھی مانگا عطا فرما. ہمارے بچوں نے مانگا قبول فرما, بیٹیوں نے مانگا قبول فرما, ماؤں نے مانگا قبول فرما, بہنوں نے مانگا قبول فرما, بھائیوں نے مانگا قبول فرما, بوڑھوں نے مانگا قبول فرما. مولا بوڑھوں نے مانگا قبول فرما, بوڑھوں نے مانگا قبول فرما, جوانوں نے مانگا قبول فرما. دنیا مانگی قبول فرما, آخرت مانگی قبول فرما, راحت مانگی قبول فرما, رزق مانگا قبول فرما, روحانیت مانگی قبول فرما. بس قبول فرما, بس قبول فرما, بس قبول فرما, بس قبول فرما. اللہ تیری بندیاں بڑی گرمی میں بیٹھی ہیں, حبس میں بیٹھی ہیں, بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں, بڑے صبر سے بیٹھی ہیں, بڑے حوصلے سے بیٹھی ہیں. آج ان کی مرادیں پوری کر دے, ان کی جھولیاں بھر دے, ان کو آباد اور شاد کر دے. ان کو نامراد نہ بھیج, ان کو بامراد بھیج. یہ ہنستی مسکراتی تیری نیک بندیاں جائیں, اپنے گھروں میں پھول بکھیریں. بس کرم کر دے, بس رحم کر دے. آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین اجمعین برحمتک یا ارحم.